Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a hot review. Assalamu alaikum आमना. वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? मैं ठीक दूर हूँ दूर तक आपकी मेरी आज मैचिंग नहीं है, यार, दूर दूर तक। दिल मिलने चाहिए आमना, ऐसा ही है, राहें मिलनी चाहिए, देखिए नजरें मिलनी चाहिए। मैचिंग आज भी है। कैसे? बताएं कैसे? कैसे? आप अपने लैंप के साथ मैच कर रहे हैं, मैं अपने लैंप के साथ मैच कर रही हूँ। देखिए ये बात होती है, वाह 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 वाह। यार दिल मिलने चाहिए जी बिल्कुल। और राहें ना जुदा हो कभी, हाँ अल्लाह ना नहीं करे। नहीं बिल्कुल, बस ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आमना, बिल्कुल ठीक है। आमना आपने कहा कि क्या हाल है? मैंने क्या कहा, क्या कहना कुछ चाहते नहीं हैं? यार, सबसे पहले मैं आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट विराट कोहली। ओह और मैं उनको बड़ा खुश हुआ मैं देख के कि उन्होंने 50-100 अपने कंप्लीट किए। जी जी बिल्कुल। विराट ने, इट्स एक्चुअली विराट नॉट विराट, तो हमें भी अपनी प्रोनाउंसिएशन विराट है, विराट अच्छा with a t, like a tomato वाला टी। ओके। So congratulations to Virat Absolutely, Kohli. congratulations to Virat Kohli. Congratulations to India on winning the semi-final. Congratulations to Mohammad Shami, who took like 7 wickets yesterday. That I don't know about. Of course. And congratulations to the Indian team that played spectacular cricket. It was a delight to watch. Of course, I was rooting for the underdog, like, and they didn't have a chance. I'm very happy for Virat Kohli also because, of course, cricket is one thing, but whenever I see him speaking, like you know, जी media interactions या interviews, जी बिल्कुल या अनुष्का के, क्योंकि entertainment को तो हम follow जी करते हैं, तो उसकी वजह से, अनुष्का की वजह से अक्सर आ जाती है कोई ना कोई वीडियो। तो I really enjoy his conversations and he seems like a really chilled out No, person. I really admire him as a sportsman. ठीक है, मैं क्योंकि जो भी वैल्यूज हैं स्पोर्ट्समैनशिप की वो इनके अंदर हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने 50 जो उन्होंने 100 किए उनमें से मैंने बेरली कोई इक्का दुक्का शायद देखी हूँ, ठीक तो है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से झूठ नहीं, ना बट बोलें, इक्का दुक्का भी नहीं देखी। नहीं, इक्का दुक्का तो देखी होंगी, इक्का दुक्का तो पाकिस्तान के खिलाफ ही होंगी तो ठीक है, देख ली होंगी, हाँ। बट ही सीम्स लाइक अ जेन्युइनली स्वीट पर्सन। और क्योंकि मैंने जो इंटरेक्शन पाकिस्तानी टीम के साथ उनका जी जी देखा अभी बिल्कुल थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, बिल्कुल जो बिहाइंड द सीन्स फुटेज आई, पिक्चर्स आई, वीडियोस आई, जी otherwise also I think before earlier in the Asia Cup, when was that, when he went up to Shaheen Shah Afridi आई थिंक अभी एशिया कप था। and sport. So it's nice, you know, he's a senior cricketer, he's a seasoned Absolutely, cricketer, absolutely. and the kind of respect that he commands on the field, I appreciate him for that. Absolutely. I don't know why we also feel a sense of pride for knowing a player like Virat Kohli. I mean, he's just spectacular. There's no doubt about it. मगर उनकी पूरी टीम यार बहुत अच्छा खेली है. There's no taking away from the fact that they are playing like champions, and it's a delight to watch them play. जिस तरीके से वो स्कोर बना रहे थे, वो ऐसे टक चौके छक्के लग रहे थे जैसे कि कोई मसला ही नहीं है. मसला ही कोई नहीं था. It was effortless. It was beautiful to watch. Yeah. And so huge congratulations to all our Indian viewers. And you know, and good for you. And they'll probably pick up the World Cup as well because आज जो हालात चल रहे हैं वो लग नहीं रहा कि साउथ अफ्रीका जीतने वाला है. काफी उनके पतले हालात थे. So Australia will win, and then Australia versus India का final होगा. Chalo, let's see. Let's see. Let's see. But yeah, the cricket is great. Unfortunately, home ground पे cricket is a cause of concern and a lot of हाँ, changes हो रहे हैं. sadness. Babar has removed himself resigned. from captaincy. Yeah, and Shaheen Shah Afridi's been Shaheen is appointed your the T20 captain, and and also what's his name? Shan Masood. Masood. So yeah. So interesting developments. Let's see. No, yeah, interesting developments नहीं है. I feel that there's a lot of इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद तो, मुझे आपको पता है इतना बाबर एनालिसिस के लिए तो खैर बहुत अच्छा हुआ नहीं, वो हाँ निकल मैं गए. यही कह रहा था लेकिन ये कि यार heart goes out to Babar Azam. I still want to say that he's one of our best players. He's one of the best sportsmen we have. Great batter, and you know, captaincy नहीं चली उनकी for whatever reasons. But I think which that is fine यार, which कोई is बात नहीं, fine, हर बंदा which हर is काम fine. कर And सकता you know, I just want to like give a vote of appreciation for Babar Azam as well. He's one of our finest. नहीं, नो डाउट, बल्कि मैं इसलिए मैं कह रहा था, मैं खुद तो इतना नहीं समझता इन चीज़ों को, पर मैं बहुत सीनियर क्रिकेटर्स को सुन रहा था, तो उन्होंने भी यही कहा कि यार कि इट्स गुड फॉर बाबर नाउ, ही कैन एंजॉय हिज क्रिकेट. एंड मैं जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा था बाबर आजम की, ऐसा लग नहीं रहा था दैट ही वाज एंजॉयिंग. He wasn't. He was So under one a lot of must be able pressure. to enjoy what they do. Yeah. So, and he's a I fantastic also, batsman. Hassan, I also hear of a lot of politics within the PCB, which is I why hear of a lot of politics within the team also. exactly. So ये है कि सिलेक्शन क्यों हो रही है लोगों की, कैप्टन कौन सेलेक्ट कर रहा है, कौन लगा रहा है, उसमें भी बहुत पॉलिटिक्स चल रही है. पहले भी होती थी, अभी भी होती है. दूसरा, क्रिकेट से रिलेटेड बहुत हॉट बाइट्स, बहुत अपसेटिंग खबरें हैं यार. नहीं हॉट बाइट्स इकट्ठी हुई हुई हैं बहुत सारी. अब आप ट्रैवल कर रही हैं तो we'll have to अब्दुल रज़ाक जो है हमारे एक्स क्रिकेटर, उन्होंने एक अभी मत ये हॉट बाइट्स के लिए मारी. बहुत सारे उसके टॉपिक्स बाद हैं.
उसके बाद एक इंजी की है वो हरभजन के बारे में उनकी एक कॉन्वर्सेशन है बिल्कुल रमीज राजा एक शो पे बैठे हुए थे, वहां वो, पे एक हाँ racist- वो एक एक racist हुआ। comment हुआ बहुत फजूल किस्म का। फिर जी एक और ऑफ क्रिकेट बड़ी इंटरेस्टिंग और मजेदार एक डेवलपमेंट चल रही है कि सबूर ने पॉइंट कहा जी कि इकरा ने उनकी शादी का जोड़ा कॉपी किया मन्नत और मुराद में। जी तो उन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की, तो फायजा सकलैन जो डिजाइनर हैं जी उन्होंने फिर उसके ऊपर एक स्टेटमेंट पास जी की। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, जी आपका बिल्कुल ओपिनियन इस पे जी जरूर हम बिल्कुल लेना चाहेंगे। बिल्कुल। फिर उसके लिए मैंने इकट्ठी की हुई चीजें अभी से, मैंने कहा आपको ओह फिलर दे दूं मैं तो जा रही हूँ लेकिन कल। आप, लेकिन आपको कौन रोक सकता है? हमें तकलीफ तो देनी पड़ेगी बहरहाल। फिर कौन भी रोक सकता है आपको? आपको कौन रोक रोक तो सकता कोई है? नहीं सकता, लेकिन तकलीफ आपको हमें फिलहाल देनी पड़ेगी फिर भी। तो ये टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर होपफुली आमना ट्रैवल आप बताना चाहेंगी। मैं कौन हूँ तो बताने वाला जी आप। मैं दुबई जा रही हूँ 5 दिन के लिए। ठीक है, जी मैं 22 को वापस तो आ आप जाऊंगी। अवेलेबल हैं या अनअवेलेबल हैं? मैं अवेलेबल होंगी ऑफ कोर्स अवेलेबल आपके हैं, लिए हसन, अरे हमेशा वाह, ऑलवेज। कैसे आपने बात की है? बस तो ये आपने आपकी आंखों में आंसू आ गए मेरी बात सुन ऑलमोस्ट के। ऑलमोस्ट। तो फिर ठीक है, आप सेटल हो जाएं तो एक दिन में हम हॉट बाइट्स हम करके बिल्कुल कर जूम पे लेंगे आपके साथ शेयर कर लेंगे। जी। और क्या है? और कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी आमना, तो माशाल्लाह आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि गेम ऑफ थ्रोन्स की शूट न्यूजीलैंड लेकिन में नहीं थी हुई। Lord और of the यकीन Rings। करें कि हाँ। मुझे पता था नहीं हुई, और मैं इंटरजेक्ट करने वाला था। फिर मैंने कहा नहीं यार, जितने कॉन्फिडेंस से बोल रही है शायद सही बोल रही होंगी, लेकिन ऑब्वियसली आप गलत बोल रही थी। मैं भी कहूँ यार, मैंने न्यूजीलैंड का तो नहीं सुना था यार मुझे ख्याल था कि किसी किसी ना किसी फैंटेसी आयरलैंड टाइप सुना सुपरनैचुरल था। फैंटेसी सीरीज की हुई थी, तो मैंने कहा पता नहीं वो होगी, वो शायद न्यूजीलैंड में भी डाउट में डाल देती है अगले बंदे को, ये इनका आर्ट है। इतने कॉन्फिडेंस से बोलती हैं कुछ कि बंदा कहता है यार सही कह रही होंगी, शायद बंदा खुद सोचने पे मजबूर अब हो इसमें जाता है। मेरा कोई कसूर नहीं है क्या कि ये मैं कह देती हूँ और आप उसमें मैं प्रेशर क्या में आ करूं? जाते हैं। हाँ मेरा इसमें एक कोई दो कसूर कमेंट्स भी आए पिछली बार, मैं अब तो खैर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब मिस इन्फॉर्मेशन इस तरह से स्प्रेड हो रही हो तो हमारी भी जिम्मेदारी ओ आयद यू होती मीन है। जब मैं मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं कर नहीं, रही हूँ आपकी क्या जो कह मिस रहे हैं? इन्फॉर्मेशन ही है ना कि गेम ऑफ थ्रोन्स हाँ न्यूजीलैंड तो में। आपका फर्ज खैर मैं तो आप किसी करेक्ट और करते हैं। नुक्ता नजर से कह रहा था, हमने पिछले रिव्यू में बात की थी। मैं डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बात फोकस हट जाता है असल मसले से। पर थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट कर लिया करें, रिसर्च कर लिया करें, गूगल पे सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, सिर्फ एक सर्च मार लिया करें पहले, और थोड़ा सा उसको स्टडी कर लिया करें हम क्या बात कर रहे हैं। और पिछला जो हमारा रिव्यू था उसमें से 1100 कमेंट्स के ऊपर 1200 कमेंट्स थे कि फादर इन लॉ महरम ही होते हैं। पता चल गया जी, पता चल गया। मैं माजरत चाहती हूँ, आई वाज नॉट श्योर। नहीं And ये तो also- हमने and हमें पता also- लग गया था फादर इन लॉ महरम होते हैं, बट ये भी ठीक है, हमारी भी नॉलेज में इजाफा होती है। हमने कोई स्टेटमेंट तो नहीं पास कर दिया था। Exactly. I mean, what is this judgment that's being passed? Oh, didn't you know? No, I didn't know. हम आलिम दीन थोड़ी हैं भाई। Exactly. हाँ, No, और I हमने didn't ये know. भी नहीं कहा था कि ये कोई, हम इस्लामी मौजू पे बात भी नहीं कर रहे नहीं, थे। और नहीं हमने मैंने फखरिया कहा था कि नहीं ऐसे नहीं है ऐसे। और हमने उसी वक्त किया, इंफॉर्मेशन ढूंढी और आपके, और ये पता लग गया कि फादर और महरम का ये है कि वो चेंज नहीं हो सकता। मतलब है कि अब वो हैं, अब अगर किसी अनफॉर्चुनेट एक हमारा जो व्यूअर है ना, फैमिली एक्सटेंडेड, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। क्या कहा? उन्होंने कहा कि महरम होता है फादर इन लॉ आफ्टर द मैरिज इज कंसुमेटेड बिटवीन द डॉटर इन लॉ एंड द सन। वो तो नहीं हुई। तो मैंने कहा ये तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो अच्छा, गया। ये बड़ी ये देखिए ट्विस्ट है टेल में। लेकिन वन वुड अज्यूम के निकाह हो गया तो फिर निकाह भी तो हो आई गया। डोंट नो। ठीक है, अब यही बात है, अब ये बहुत टेक्निकल मसले हैं भाई, इसके लिए तो किसी मुफ्ती साहब से डिस्कशन करनी पड़ेगी। बट ऑन अ वेरी लाइक बेसिक लेवल, ऑफ कोर्स फादर इन लॉ इज अ महरम, वो हमने उसी वक्त करेक्ट कर लिया था अपने आप को। जी। एंड इवन इफ द लाइक द हस्बैंड इज डेड, जी, द even then फादर he इन लॉ remains to स्टिल be a रिमेंस। man. जी बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो ये, और क्या कहना चाहिए आप? मैं इतना कुछ हुआ है, बाकी मुझे बाद में ख्याल आएगा कि ओ हमने ये चीज डिस्कस नहीं की। क्या आई डोंट नो, कोई रह जाएगी चीज। ये सारी बातें तो हो गई, हॉट बाइट्स हम कर लेंगे, एंड विद अ प्रेयर फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन पैलेस्टाइन। एब्सोल्युटली। सीज फायर होना चाहिए, रुकना चाहिए। ये जुल्म Genocide जो needs हो to रहा है, stop. और जो भी इस पोजीशन में है कि वो इस फैसले में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से अपना हिस्सा डाल सकते हैं, तो उनको ज़रूर अपना हिस्सा डालना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए इस बात को कि देयर मस्ट बी अ सीज फायर एज सून एज पॉसिबल। जी, मैंने आपकी बात पे बड़ा सोचा। किस बात में? जो आपने कहा ना कि लोकल ब्रांड्स को, जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको ना आप बैन करें, और ये
मुझसे फिर भी बैन हुआ। ठीक है, इसलिए फिर कि ओनली आप बात सही कर रहे हैं कि नुकसान आपकी इकोनॉमी का होगा, बट सम थिंग्स हैव मोर सिंबलिज्म दैन प्रैक्टिकल पर्पस, एंड द सिंबलिज्म ऑफ बैनिंग organizations that are pro Israel right now I think is greater. मैं उस बात से तो डिसएग्री कर ही नहीं रहा, हम ना प्रो इजराइल अगर कोई भी है तो आप उसको जरूर बैन बिल्कुल, करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइज है, अगर एक मदर कंपनी है और नहीं, उसकी हम समझ गए आपकी बात। फ्रेंचाइजीज हैं, सुन तो ले आगे, XYZ फ्रेंचाइज एक मुल्क में एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, और पैसे दे रही है। उसी मदर कंपनी की एक और फ्रेंचाइज ABC कंट्री में अपोजिंग ग्रुप को सपोर्ट कर रही है और उनको पैसे दे रही है। तो आप किस बेसिस पे मदर कंपनी को बायकॉट कर रहे हैं फिर? यू नो व्हाट आई मीन? जब ये लोग आपकी पसंद के ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं और पैसे भी भेज रहे हैं और एड भी भेज रहे हैं, और ये वाली जो फ्रेंचाइज है वो अपने मुल्क की कर रही है, सो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम देयर, यू नो। ये तो पैसे भेज रहे हैं ना, आपके जो मुल्क की फ्रेंचाइज है वो आपकी पसंद के ग्रुप को सपोर्ट कर रही है और उनको पैसे भेज रही है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, जस्ट डू सम रिसर्च। आप रिसर्च करें, फ्रेंचाइज का मॉडल अगर आपको नहीं पता होगा, उसका एक सर्टन शेयर रॉयल्टीज की सूरत में आपने देना होता है, एंड इट्स रिगार्डलेस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। या तो गूगल करें चीज़ों को, जिन चीज़ों के बारे में आपको समझ ना हो आपको मिल जाएगी। देयर आर सो मेनी, एंड नॉट सेइंग कि मीडिया पोर्टल्स पे जाएं, और भी जगह हैं, ग्रुप्स हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी वेबसाइट्स को जाके स्टडी करें जी। आज हमारे पास जो ड्रामे आमना जी, उनमें सर फहरिस्त है जी काबली पुलाव की एक शानदार एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड, एंड दिस genuinely was my favorite episode. It's getting better. Beautiful episode. Then we have 2 episodes of Mannat Murad. We do. We have 2 episodes of Jaise Aapki Marzi. We do. We have 2 episodes of Gum. We do. Extremely disappointing aspect in one episode which I would like to talk about. ठीक है. Then we have 1 episode of Jog Sarkar that I watched. Second last as well. Huh? Second last as well. Second last. And 1 episode of Working Women I watched. And I have things to say about that. But other than that, I did not watch Jindo. And neither did I. ठीक है. I could not watch Jindo either. आपने मुझे ऐसी चीज देखने पे लगा दिया जिसने मेरी जिंदगी के 3.5 घंटे तो ले लिए। जवान जी। तो आज हम इस रिव्यू के बाद उसका भी एक छोटा सा रिव्यू रिकॉर्ड करना चाहिए हमें, क्यों नहीं जी, क्योंकि उसमें काफी कुछ है जी बात करने के लिए। तो आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी, ये होपफुली आप सैटरडे को जवान का रिव्यू हमारा देख लेंगे, होपफुली कल मतलब। तब तक विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी आमना जी, कहाँ से आप शुरू करें? आमना आप शुरू कर लें, मेरे ख्याल में जोग सरकार की सेकंड लास्ट एपिसोड से शुरू जी, आप जोग सरकार की सेकंड लास्ट एपिसोड से स्टार्ट करें। आपने जो एक दी थी, क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल ठीक, मैंने आपको बता दिया। आप पहचान लेते हैं ऐसी बात? मैं बता दूं, उड़ती चिड़िया को देख के कि ये नरम आता, बिल्कुल आपने उड़ती चिड़िया को देख के पहचान लिया कि ये वो वहाँ है ही नहीं जहाँ पे वो हैं, देयर समवेयर एल्स, दे वर इन अ सेफ हाउस, पुलिस क्वार्टर में बिल्कुल ठीक था। अच्छा, मैंने ये किस जो एंजॉय की जोग सरकार की, मुझे ऐसा लगा कि जो इसका बिल्डअप है ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मीरल एंड पीरल वो बड़ा अच्छा जा रहा है, बिकॉज द न्यूज़ इज टाइटनिंग अराउंड देम एंड एवरीबडी इज नाउ आहिस्ता आहिस्ता कमिंग अगेंस्ट देम। तो मुझे I enjoyed it. I mean, I don't know, आपके एक्सप्रेशन से I mean at this juncture, अब सेकंड लास्ट एपिसोड पे हम पहुंच गए हैं। अगर आप मैं यही सोचा कि यार कि जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, अगर उस तनाजुर में देखें तो इट वाजंट दैट ग्रेट जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें एपिसोड का जो इम्पैक्ट था। बट पिछले हफ्ते के एपिसोड्स के मुकाबले में यस इट वाज अ बेटर एपिसोड। नो, आई थिंक दैट इट्स कमिंग फुल सर्कल। आई थिंक मेरे ख्याल में आमना जिस तरह का बिल्डअप हो रहा है यार, इस तरह का फ्यूडल सेटअप एक एपिसोड में डिसमेंटल होते हुए ये है। एब्सोल्युटली ये बात मैं एग्री करती हूँ, मगर जिस तरीके से कर रहे हैं वो जल्दबाजी में, उस लिहाज से इट्स कमिंग फुल सर्कल। कि फॉर एग्जांपल जहां दाद जो है वो भी कह रहा है मैं देख लूंगा, जो मुख्तारा का भाई है वो भी कब्र पे जाके उसने कहा मैं देख लूंगा। बट उनका हाँ मतलब है कि एक अपराइजिंग सी हो रही है, अपराइजिंग सी हो रही है। नूरी भी कह रही है कि मैं देख लूंगी, यू नो, उसने भी बदला लेना है, उसको पता चल गया शौकत की डेथ का। अरसलान जो है वो, एंड आई रियली लाइक द कैरेक्टर प्लेड बाय, आई डोंट नो द कैरेक्टर्स नेम और द एक्टर्स नेम, बट द मिनिस्टर्स सन, द यंग मिनिस्टर्स सन, who says कि यार we've been through this and I may not like him as a person a lot, but I know that he's a very honest officer
एंड हम कब तक ये जागीरदारों की उसमें चलते रहेंगे, ब्रेक करें इस साइकिल को. आई रियली लाइक दैट. I really like that. I like the fact that police force जो है वो is abiding by the law, but their loyalties are with their officer. I enjoyed that. ठीक Somehow it was very enlightening and very sort of enjoyable to see कि ठीक you know हर बंदा negative नहीं है, हर बंदा बुरा नहीं है. At this point, it was encouraging to see that ठीक things are uprising against the Pirals and the Mirals. I felt And Hiba that very famous way of killing the dog chase is going to happen. with Arslan. And of course Aslan कोई ना कोई बचा ही लेगा उसको. हाशिम नदीम साहब की किताब बचपन का दिसंबर पढ़ते हुए, दिसंबर था ना, बचपन का दिसंबर आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट में देखा है, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने उसका टाइटल गलत पढ़ा है. तो वो अरसलान ट्रेन में किताब पढ़ रहा होता है. तो जी. आप अक्सर देखें हाशिम नदीम साहब की किताबों कहीं ना कहीं आ जाती हैं जी. उनके ड्रामों में, तो मुझे अच्छा लगा वो डिटेल. दूसरा हिबा के जो सीन्स थे, मुझे लगा कि सिवाय जो अरसलान और सस्सी की एक मुलाकात थी, उसके अलावा इसेंशियली हिबा के सीन्स इसलिए थे बिकॉज देयर वाज नो हिबा, तो वो डाले गए सीन्स, मुझे ऐसा लगा, बिकॉज अदरवाइज उन सीन्स की कोई खास रेलेवेंस, मुझे ख्याल है कि सस्सी की जरूरत ही नहीं थी इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स. तो ये एक मुझे थी, क्योंकि हिबा लुक्स द पार्ट रियली इसमें, इन झोंक सरकार, अरसलान और जो एक आई थिंक आपने शायद कहा था कि केमिस्ट्री उस तरह की नहीं है, कमेंट में किसी ने कहा था, बट मैंने महसूस की कि उनके बीच में है एक, उसको पनपने का मौका नहीं दिया गया. अरसलान और सस्सी के बीच का जो रोमांस है ना, वी डिडंट गेट इनफ ऑफ इट. अगर उस पर स्पॉटलाइट दी जाती और कुछ ज्यादा उनकी इंटरेक्शन या सीन्स दिखाए जाते, तो आई थिंक ये भी एक ऑन स्क्रीन जोड़ी में पोटेंशियल थी. देखिए मेरे ख्याल है कि मगर इसकी जरूरत नहीं थी, इस रोमांस की जरूरत नहीं थी, पोटेंशियल रोमांस तो हुआ ही नहीं. खैर इस रिलेशनशिप की भी दिखाने की जरूरत नहीं थी, और अगर दिखानी थी तो जरा सा आगे ले जाते. हाँ, यही मैं कह रहा हूं, जरा सा आगे ले जाते, बिकॉज मजा नहीं आया. या तो ना डालते वी वुड हैव बीन ओके विद इट कि यू नो ठीक है यार, एक ऑफिसर है, उसका दिल टूटा हुआ है, ही इज ब्रोकन अप विद हिज गर्लफ्रेंड एंड ही डजंट हैव अ वुमन इन हिज लाइफ. हम ठीक था, इट वाज फाइन. If I go back to Chulbul Pandey, for example, his romance with that girl, and I don't remember the name, of course, played by निच्चो है. वैसे तो हर चीज याद रहती है, भूल गया. एक्ट्रेस का क्या नाम है? सोनाक्षी सिन्हा. वो आपको बड़ा ठीक ठाक, उनके गाने भी जबरदस्त होते हैं, उनका रोमांस भी होता है. जब शादी हो जाती है उसके बाद भी यू नो शी बिकम्स लाइक अ वीक पॉइंट इन हिज लाइफ, एंड देयर इज अ पर्पस टू हर एग्जिस्टेंस. ऑल्दो वो भी कोई ऐसा कोई रोल नहीं था कि जी आप कहें कि जी बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर था, बट देयर वाज अ पर्पस इन हिज लाइफ. यहाँ पे सस्सी का कोई पर्पस नहीं है अरसलान की लाइफ में. पूरे एपिसोड्स में there is nowhere you feel that oh my god this great scene would not have happened without Sasi. Her name was indeed Rajju. I'm proud of you. Yeah, proud of you. तो रज्जो जो थी उसका एक मकसद था, शुरू में था ना, एक चुलबुल की जिंदगी में एक शादी होने का, और वो प्लस आपने चुलबुल की जिंदगी में एक दिखाया कि यार वो प्यार भी कर सकता है, और उसकी ये वाली साइड भी है. हम ये साइड अरसलान की देख चुके हैं, पहली गर्लफ्रेंड के साथ, और फैमिली के मैन है, अच्छा भाई, अच्छा भाई है, अच्छा बेटा, नहीं जरूरत थी इसकी. ठीक है. एनीवे लेट्स सी अगले एपिसोड में क्या होता है. उस्मान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोबारा एज पीरल. आखिरी सीन बहुत मजे का था, फरहान और उस्मान के बीच में, पीरल और अरसलान के बीच में. आई एंजॉयड दैट सीन, एंड ऑफ कोर्स नूरी, दैट सीन वाज आल्सो इम्पोर्टेंट. जब पीरल कहता है, हाँ पीरल कहता है कि भाई अब तो यू विल हैव टू स्टे इन दिस रूम, तुम्हें बड़ा शौक है अपने आप को कैद में रखने का, अब रो तुम क्या. तो वो मामिया ने भी उसको अच्छा परफॉर्म किया वो सीन. मूविंग ऑन टू आमना जी, वर्किंग वुमेन. It was a very interesting episode. I really enjoyed ये जो इंट्रोडक्शन हुआ है शफी का, और जिस तरह से वो आया है, अब सडनली मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा आ गया इस ट्रैक में, नसीब और शफी पे. ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ है. बिकॉज आपका दिल कह रहा है कि यार ये बुरा आदमी नहीं है. आई डोंट नो आपका दिल क्या कह रहा है. मुझे भी लग रहा है कि बुरा आदमी, मुझे लग रहा है इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड, और वो कहेगी कि दिस इज so natural, and I love the dynamic that's being played out. कि okay, so there's this man who's extremely influential, or he is a Badera type, and he has the luxury and the money and the power, और वो उस पर निछावर भी कर रहा है. कहता है पहले दफ़ा में खाली हाथ आया तो फिर फूल भेजे और टोकरे भेजे फल के, और वो he's doing the whole part. And
she's repelling him because he has this show of power, and she's like सब मर्द एक जैसे होते No, हैं. अंदर से वो enjoy मगर कर अंदर रही से है. वो, yeah, absolutely, and that's so natural. That's so natural. And it's not to say that every woman needs a man in her life to be successful or complete. This is not saying that. But what is said is, and what is being shown is that there's no harm. It's also good to have a companion that will indulge you, you know. It's okay. And आमना ये shout out to फवाद जलाल जी बिल्कुल. as शफी. बिल्कुल. He's a very good actor. हम गुम में भी उनको देख रहे हैं, हमने पहले भी उनको देखा. मैं He's a very likable actor. हाँ, मैंने बल्कि interestingly दास्तान जब देख रहे थे उसमें भी he was there. Yeah. Did you have to mention Dastan? Yeah, but he's been working for quite some time. And जब भी But हम again, it depends on how the character has been written हाँ. and how he's directed. Because suddenly, I mean, he hits you as, okay, wow, there's a Shafi and Nusi's life now. Yeah, and he fits the part really well. Totally. जो बात करने का तरीका सारा, dialogue delivery, body language. Who doesn't like to be indulged, यार? किसको नहीं अच्छा लगता? Yeah. I mean, he seems like a वडेरे का बेटा. Absolutely. But उसने कहा मैं वडेरे का बेटा नहीं हूँ. I'm not your typical वडेरे का बेटा. No, but I enjoyed that part. Very much, very much. Second part I enjoyed. Amber. यार, I have to. Can we clap for Sarah? We can clap for Sarah. Seriously. Sarah Asghar is such a phenomenal actor. Phenomenal यार scenes. वो मुझे देखिए आमना आप एक बात 100 बातों की एक बात है, ये बातें आपके दिमाग में आ ही जाती हैं कि यार टिपिकली आप बोलेंगे एक नया चैनल है उसके लिए काम हो रहा है, एक ऐसा ड्रामा है कि जिसमें ऐसी कास्ट नहीं कि आप बोलेंगे सारे आई बॉल्स होंगे इसके ऊपर. बट द फैक्ट कि उस लड़की ने इतनी मेहनत से वो सीन किए हैं, वो स्पेशली व्हेन शी वाज क्राइंग अभी एंड में, यार वो सो वेल डन, so well done. And I'm like यार एक्टर्स के दिल में भी ये बात आती होगी ना कि यार मैं इतनी मेहनत क्यों डालूं इस कैरेक्टर में. इट्स नॉट लाइक यार के मिलियंस ऑफ व्यूज आने हैं इसके ऊपर, और आ भी नहीं रहे, क्योंकि मैंने एपिसोड खोली तो नीचे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ था कि व्हाई इज दिस ड्रामा नॉट गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज, यू नो. सो अनफॉर्चुनेट है नहीं आ रहे, बट फॉर एन एक्टर टू यू नो फाइट दैट थॉट, मुझे नहीं पता सरा के दिमाग में आई या नहीं आई, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बट द फैक्ट दैट शी इज गिवन सो मच टू दिस कैरेक्टर एंड सो मच एफर्ट, it's fantastic. Heart and soul, I would say. Fantastic, Heart and soul. But credit goes to the gentleman who's playing her boss as well. And of course, I looked for the name and I couldn't find it. And I've even asked for the name. But you know, those scenes were very strong. उनकी जो एक messaging थी ना उन scenes की, वो बड़ी strong थी, और जो dynamic थी उसमें आपको नजर आ रहा है कि you know she's going with what society will expect. And he's quiet and she's like ये भी ऐसा ही है. And then वो वापस आता है, कहता है तुम उस छोटी बच्ची को सजा दोगी, you know, जिसने प्यार किया. It was such a beautiful dialogue. They don't punish yourself. Don't punish yourself. मतलब है कि forget it, forgive, forget, move on. जब वो The breakdown was like my शुरू God. में लंच पे हाँ. when she thinks कि वो लंच शेयर नहीं कर रहा है, and हाँ. she comes and वो वाला meltdown, उसके बाद ये यहाँ पे when he says कि तुम्हारी कहानी है तो तुम इसको ट्रांसलेट करके वो कर दो, वहाँ पे her expressions and the way she emoted what was going through her, it was beautiful. Beautiful performance यार. Again सरा के लिए clap. Well done यार. We must appreciate actors जो इतनी जान डाल के और काम कर रहे हैं, और and it is rather unfortunate कि उनका काम ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहा. तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अप्रिशिएट करें सरा को, पर्सनली जाके सरा को आप कॉन्ग्रेचुलेट करें फॉर दिस परफॉर्मेंस, और इनकरेज करें यार, ताकि इस तरह जो मेहनत कर रहे हैं एक्टर्स वो मेहनत करते रहें और हम और ज्यादा उनका काम देखें. बिल्कुल. नहीं, बहुत बेहतरीन सीन से बड़ा देख के मजा आया. और यहाँ पे आपको एस्टैब्लिश हुआ कि यार इनकी रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग हो गई है, इन दो लोगों की, चाहे एज फ्रेंड्स ही हो, पता नहीं आगे क्या होता है, we don't know कि आगे क्या होता है, इनकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गई है. एंड आई थिंक फ्रेंडशिप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एनीवे बिटवीन टू पीपल. उसके आगे जाके कुछ और होता है, बट एक जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक ट्रस्ट है, ये दो चीजें, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, वो उनके बीच में अब एस्टैब्लिश हो गया है. वो बहुत खूबसूरती से किया गया है. ह्यूज शाउट आउट टू यात्रा एज वेल फॉर डायरेक्टिंग इट सो वेल. और ऑफ कोर्स वो जो एक ट्रैक था आशा और टीटी वाला जी, वो उन्होंने हाथ पकड़ लिए एक दूसरे के, मुझे पता नहीं क्या वो क्या चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी वहां पे क्या होता है. चाह रहे हैं बेचारी रोजी जो है उसके डॉक्टर आरिफ शली की ट्रांसफर ये मैं जिनान को भी एक शाउट जिनान के लिए बता क्योंकि देखें अब ये सारे सीन्स हैं, इट्स नॉट लाइक कि वहां पे दूसरी तरफ एक्चुअली कोई बात कर रहा है जिनान से, ये यहाँ पे शूट हुए हुए हैं एक तरफ से. इट्स नॉट द लाइक यू नो शी इज एक्चुअली हैविंग अ कन्वर्सेशन, मे बी समबडी इज डूइंग इट, बट उस तरह से तो नहीं ना, इट्स नॉट एन एक्चुअल कन्वर्सेशन, बट द वे दैट शी इज परफॉर्म्ड अगेन इन दोस सीन्स, स्पेशली फोन कॉल पे, शी लाइक कि मैंने तो कर लिया जो उन्होंने कहा था, और वो बंदा अपेरेंटली काशी आगे से ये कहता है दूसरा है उसके साथ भी, तो शी लाइक तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ,
Yeah. तो जनान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म बहुत किया अच्छा है performance और है, वो और जो एक चेहरे पे एक मिक्स्ड रिएक्शन था और नोइंग के यार कि वो तो डॉक्टर आसिफ जो है वो तो जा रहा है Yeah. तो वो भी बड़ा अच्छा इमोट किया हाँ ब्यूटीफुल मतलब है कि एक किस्म का वो था भी रिलीफ भी गुड रिडंस मगर ये भी था नो फ्रस्ट्रेशन वरी थी कि यार कि मैंने इतना Yeah. लाइक यू नो व्हाट ऑल आई हैव डन एब्सोल्युटली टू फ्रस्ट्रेशन गेट द वरी लोन अप्रूव्ड और लोन बिल्कुल अप्रूव किए बगैर वो कैसे जा सकता कैसे है जा सकता है वेरी वेल प्लेड और फाइनली देन हशमत हशमत के ट्रैक फायदा जलाने मुझे पहले ही पता था कि ये होगा और बड़ा उसके बॉस ने क्लेवरली ये सारा एग्जीक्यूट किया कि उसको भी नहीं पढ़ने दिया कि भी तुम्हारी वजह से बट ही सेड कि बेहतर है कि यू नो स्टार आपके लिए बेहतर है कि आप चली जाएं आपके लिए बेहतर है कि आप नया स्लेट से शुरू करें आपके लिए बेहतर है कि इस गन से निकलें अच्छा मैंने एक चीज रियलाइज की है कि ये जो मर्दों का ना दिखाना है ये इंटेंशनल इसलिए है बिकॉज दे रिप्रेजेंट सोसाइटी पेट्रियार्की की जी सो देयर इज नो नॉट जस्ट वन मैन और वन एक्टर ओनली द गुड मैन आर शोन ओनली द गुड मैन आर या शोन सो यू दे डोंट शो यू इस तरह के इविल बॉसेस या मैनेजर पिछला दिखाया था डॉक्टर आसिफ को नहीं हमने डॉक्टर नहीं देखा दिखाया आपने लेकिन मैनेजर दिखाया था हाँ आपने एक ये नहीं दिखाया बंदा हशमत वाला जो था नहीं ही कई स्पोक that's an interesting observation because choosing है selective है जिनको दिखाया जा मुझे रहा है लगता है कि जो सोसाइटी एट लार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं उनको नहीं दिखाया गया हशमत के हस्बैंड को भी नहीं दिखाया गया जिसके लिए वो फ्राइड फिश और हाँ नान लेके जा वो रही थी हस्बैंड है या क्या है बिकॉज क्या ही we सेज don't के know. हशमत जी ही डजंट से हाँ कि वो जो बीवी के साथ टिपिकली एक बात करने का तरीका होता है वो भी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक है कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या हो रहा है वहाँ पे एग्जैक्टली तो वो भी मजे का है और यहाँ पे एक रहेगी साइमा क्या है रह गई जी हमारी सादिया 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 बेचारी को लिफ्ट नहीं मिल रही फिलहाल अपने टिकटॉक कह रही है करियर ये में कौन है ऐसी ब्यूटीफुल वुमेन्स को देखा है Yeah. वो भी इंटरेस्टिंग था It was a very good episode of Working Women. I really enjoyed it. जी but we want to see Shafi more of Shafi Yeah, of course. course. And I hope that he stays like I a think he will. good guy. yeah I know हाँ ठीक है कोई अच्छे भी मर्द होने चाहिए यार कभी 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 मूविंग ऑन टू आमना जी Jam. जैम प्यार के साए में बीज थे बोए मैं कहना चाहूंगी कि जैम जो ना बन गया है मुरब्बा बहुत ही अजीब और देखिए गरीब जैम किस्म की का बात है। ये है कि यार हम एक दफा और नहीं कह सकते कि इट्स अ ग्रेट स्टोरी इट्स अ नहीं स्टोरी दैट शुड नहीं बी जैम टोल्ड जो है वो पैची है उसका काम अब जैसे वो आंटी एकदम उन्होंने डिसाइड किया मैं जा रही हूँ उसका क्या था बिल्डअप उससे नहीं पहले यार, वो क्यों गई है मैं मतलब है कि वो व्हाई हैज शी लेफ्ट व्हाई पैसे चेक दे के गया ना वो हाँ चेक दे के गया है मुझे शादी पता का। है कि क्यों गई है बट बट नहीं दिखाया ना हमें हाँ, वही ना exactly. बिल्डअप बीच में सीन्स मिसिंग है अब जैसे एक सीन में उसकी और वो उसका क्या नाम है इसका बॉय का शेरी का थोड़ा सा मेल्टडाउन होता है कि अमेरिका नहीं जाना अमेरिका बट वो सीन कट टू खत्म हो जाता है और अगले सीन में वो बिल्कुल फिर से ठीक हो जाते हैं सो लाइक यू नो किसी सीन में वो बात कर रहे होते हैं और अगला सीन आपका ऐसा जंप आता है कि आप कहते हो कि यार ये बीच का कहाँ गया पार्ट इट मेक्स सेंस ओनली बिकॉज शेरी का कैरेक्टर हमारे दिमागों में ऐसा स्टैब्लिश हाँ, हो गया हमें erratic पता है है, यार कि ये exactly. इराटिक है तो इसलिए हम कहते हैं कि यार सीन्स भी erratic इराटिक है, है he blows सीन्स out- तो होने चाहिए ना उनमें एक ब्रिज तो होना चाहिए ना ट्रांजिशन तो होनी चाहिए ना ये ऐसे रैंडमली कट चॉप्ड ऑफ सीन्स हैं कि इट्स लाइक जोड़ दिया बस अच्छा बात ये है कि इट्स अ स्टोरी ऑफ अ वुमन हु इज बीइंग इमोशनली अब्यूज्ड राइट और आपने वो पेंडुलम दिखाया हुआ है कि यू नो वो शी इज इन लव शी इज नॉट इन लव ही इज गुड ही इज बैड ही इज गुड नो शी इज इन लव पीरियड नाउ exactly what I'm going to say. The thing is that she's not suffering anymore. She's completely in love now. तो अब ये भी दिखाया हुआ है कि ऐसा होता है औरतों के साथ बिल्कुल होता है बट नाउ व्हाट बहुत अरसे से अब 24-25वीं एपिसोड थी ये यार हमने एस्टैब्लिश हो गया है दैट इसका इमोशनल अब्यूज हो गया है उसके बाप ने भी कह दिया है कि ही इज इमोशनली अब्यूजिंग हर एंड शी कांट सी इट नो शी कांट बट व्हेन इज शी गोइंग टू स्टार्ट सीइंग इट अच्छा बाप वाली जो बात है हाँ। नाउ आपको पता है मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि बाप जब अपनी बेटियों के लिए अब स्टैंड आप लेते इस बाप की से अप्रिशिएट नहीं हैं। इस कर बाप का प्रॉब्लम है जी क्योंकि ये बाप ना कम इधर इट्स बैड राइटिंग और बैड डायरेक्शन और आई डोंट नो व्हाट बट ही कम्स अक्रॉस एज कि वो अपनी ईगो के लिए स्टैंड ले रहे हैं ना कि Yeah. वो कहते ही हैं कि मैं बेटी के लिए स्टैंड ले रहा हूँ बट ही कीप्स ऑन सेइंग कि मैं इस घर में नहीं रहना मैं दामाद जो है वो बेटा नहीं होता
he is not saying the right things. No. Has he made, मतलब of course उन्होंने बेटी के साथ बात करने की कोशिश तो की है, लेकिन वो बात किन मगर वो अल्फाज भी में करने दामाद की के कोशिश की है? सामने किया है, कोई ऐसे बैठ के नहीं किया। किन अल्फाज में बात करने की कोशिश की है? अपनी प्रोफेसर है, कामली अपनी बेटी को बिठाया है, समझाया है, बताया कि बेटा ये देखो, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। ये नहीं है ही कीप सेइंग कि यार मैंने इस घर में नहीं रहना, मैंने इस घर में नहीं रहना, मैंने इस घर में नहीं रहना। नहीं, भाई he keeps referring to Sherry जब वो आता भी है बदतमीजी से, एक दफा भी नहीं कहा बेटा you need to understand कि you know मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं नहीं करता। वो इस तरफ जा ही नहीं रहे। आप सही कह रहे हैं। नहीं, तो उनकी नीयत को मैं डाउट नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ये बातें सारी कह रहे हैं कि मेरी बेटी Execution उनकी गलत है। उनकी एग्जीक्यूशन नहीं सही हो पा रही। हाँ, और मैं उनको बहुत सपोर्ट करता अगर वो इसको प्रॉपर चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करते अपने मसले को। बिकॉज रमजा भी बात तो सही कर रही है कि यार कि मेरी बहन जो है वो गलत है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, बट व्हाट हैज शी प्रैक्टिकली डन टू एड्रेस दिस सिचुएशन? नहीं क्या करे वो है रमजा, क्या करे? मतलब वो बात करने का तरीका उसका annoying है ना। रमजा की बात एग्जीक्यूट सही हो रही है। रमजा की अनफॉर्चुनेटली द परफॉर्मेंस इज नॉट दैट ग्रेट। तो फिर मसला है ना, performance is एग्जीक्यूशन not में the मसला है, character- one way or the other। exactly one or the other। तो जो दो कैरेक्टर्स बात ठीक कर रहे हैं वो आप सुनना नहीं चाहते बिकॉज वो दोनों कैरेक्टर्स आपको अनॉय हाँ, करते हैं। हाँ। बॉटम लाइन ये है, बात दोनों ठीक करें। बात दोनों ठीक कर रहे एंड हैं अगर आप इंटरेस्टिंग चीज देखें, माँ गलत कर रही है बट समहाउ आपको लगता है कि यार ठीक है, क्योंकि वो आपको सही लिखा बस सही गया है। वो लिखा हुआ सही गया है, वो परफॉर्म सही हुआ है, वो एग्जीक्यूट सही हुआ है। इट्स क्वाइट वियर्ड बिकॉज माँ का ट्रैक आपको अनॉय करना चाहिए बिकॉज वो गलत कर रही है। नहीं वो भी कर रहा है, मुझे तो वो भी कर रहा है। उतना नहीं मुझे कर रहा, वो नहीं कर रहा मुझे वो डिस्टर्ब नहीं कर क्योंकि रहा। एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, माँ तो गलत बात कर रही है इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। बट मुझे माँ भी अनॉय कर रही है। क्या है यार, घर छोड़ के चली गई, दूसरी बेटी कुछ नहीं मायने रखती। वो ये तो क्या बात है? वही मैं कह रहा हूँ ना, वो बैड एग्जीक्यूशन है कि वो क्यों छोड़ के गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। This family is dysfunctional. It's all over the place. So no matter the child is not managing to understand. बट व्हाट आई एंजॉयड द मोस्ट वाज नताशा। नताशा का आपको अच्छा लगा? नताशा के तो foot नगा पैर massage? नोशन तो लगाओ, पैर पैर में दबाओ। कह रही भाई हमारे घर में ऐसे ही होता है भाई, कोई नॉर्मल बात है, चलो आओ। और फिर वो ठुड्डा मार के निगरा देती है जब वो अंदर आते हैं तो। अच्छा इनके क्या रिलेशनशिप है आपस में, क्या लगता Nothing. है? इंटिमेसी तो है उनकी मेरे- Nothing. है मेरे ख्याल Not at all. में। Why is she letting him sleep on the same He's bed? sleeping. It doesn't matter whether he's sleeping, but there's absolutely no intimacy. When she's changing, she says, "Please leave. I have to change." बाथरूम में मुझे तो लगा वो सिग्निफिकेंस थी उसकी। So there's no way Natasha is going to get pregnant. No way, man. Or maybe when she wants to get pregnant, she will. But abhi, there's no intimacy. You think there's none? I don't think so. I wish they had shown a bit more clarity कि है कि नहीं है. Why? I would like to know. That's why. And so would you. And so would 500,000 people watching. Yeah. Not 500,000, millions of Millions of people watching. Yeah. Half a सबके million, दिमाग क्या में ये बात बात है कि रिलेशनशिप क्या है. I think आगे अब चल के आपको पता चलेगा कि क्या उनकी डायनामिक है। जी. यार वो जहाँ पे खाना खाते हैं ना डाइनिंग टेबल, वो एक पॉइंट पे मुझे लगा बेड है। जब इस एंगल से उन्होंने शूट किया ना, मैंने कहा ये सारे बेड पे नहीं बैठ यार। के क्यों खा, वो पीछे वो हेडबोर्ड इस तरह का लगा हुआ था ना। मॉडर्न टेबल्स ऐसी होती हैं. पता नहीं यार, एक साइड पे बेंच टाइप होता है, दो कुर्सियां होती हैं, दो टाइप पे बेंच मुझे टाइप. नहीं, ये ऐसा डाइनिंग टेबल पसंद है मुझे। मुझे भी ऐसे पसंद है. आराम से खुले डुले होके बैठे हैं यार, ये क्या है? ऐसे लग रहा है कि फंसे हुए हैं. फूड कोर्ट में बैठ के खाना खा रहे हैं। हाँ. नहीं पसंद आया मुझे। नहीं पसंद आया. एनीवे तो वो मुझे बड़ा ट्रैक मजे का लगा सारा। अंगूठी वो दे देती है अपनी मुलाजमा को जी. और कहती है कि what? Shut up. I mean, she's so unperturbed by him. No, the thing is that Natasha is a very interesting character and played brilliantly by Kiran Malik. I mean, totally fits the role. वो सब कुछ अपनी जगह है. अच्छा किरण के लिए अब एक चैलेंज है हाँ. कि मैं तो ब्रीफली मेट हर, आई थिंक जब मौला जट का, नहीं वो कौन सी थी जो वो फवाद वाली फिल्म मनी बैग, तो वहां पे ब्रीफली मुलाकात हुई, तो मैंने कहा वो शी इज प्लेड दिस रोल सो वेल, when you meet her next time you would expect कि like you know she's actually like a Natasha. She's played it really well. आपने पिंकी मेम साहब देखी थी? नहीं मैंने नहीं देखी। मैंने देखी थी, उसमें भी she played a high society woman. अच्छा। हाँ, played very well, not negative, played very well as well. But वही बात है कि वो सब कुछ ठीक है, she's played it very well. The track is also interesting. मगर जो story का core था ना, it's lost its grip. And what it's going was that? round and round, round and round. यही कि how emotional abuse की क्या significance है जिंदगी में, and how a man can completely mess over a woman's life. अच्छा इस एपिसोड में टू बी फेयर वैसे देखें अगर
तो शेरी ने कितना उसको अब्यूज किया वो इमोशनली, नहीं करेगा बिकॉज वो तो गिवन कर गई है सब कुछ, वो कर गई। ऑब्जेक्ट कर ही नहीं रही किसी चीज पे। स्पेशली जब वो माँ से बात कर रही होती है रमजा से कि मैं नहीं आऊंगी, शेरी ने मुझे रोका नहीं है, तो वो कहता है Exactly. जाओ मुझे नहीं फर्क पड़ता, तुम जाओ। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन जब एक वक्त शेरी ने एक्सप्लॉइट किया इसको, जो थ्रू हर अंडर द बस एंड सेड कि तुम नताशा से कहो के जाए। नहीं, पर वो आगे से कहती है वो यही होता है, कभी तुम मुझे कवर करो कभी मैं वो करूँ, तो और वो करता है उसको वो कवर तो उसकी। गिवन किए जा रही है, हर रोज तो वो बैठ के कह रही है शेरी तो आप कितने अच्छे हो, बट तो देखें अब एक बात है, मैं शहरी को समझता हूँ, लेकिन जब इसकी फैमिली की बात आती है तो शहरी जाके अपनी बेइज्जतियां भी कराता है, सब कुछ करता है, तो शहरी भी तो करता ही है अगर इस तनाजुर यार में देखें। शेरी बड़ा मीसना है, किया उसने एग्जैक्टली वही है जो वो करना चाहता था। ही प्लेज अ डबल पॉलिसी, ऊपर से मतलब बिल्कुल ऊपर ऊपर मीठा मीठा, नीचे नीचे छुरी छुरी, वो चल रहा है, करता वो वही कुछ है जो उसने करना होता है। शेरी बहुत टू फेस्ड है, डबल फेस्ड है बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन एग्जीक्यूशन का फॉल्ट है यहाँ पे कहीं ना कहीं, मतलब उस तरह से कहानी नहीं कम्युनिकेट और कन्वे हो Which is रही। why I मुझे लग said- रहा है कि लोगों ने खुद जैसे आपकी मर्जी को खुद ज्यादा समझ लिया है। हाँ, which is why I said a couple of episodes ago कि शेरी I wish that conspire ना कर रहा होता है and this came naturally to him। मगर आपने दिखा दिया ना कि वो इतना है aware of his actions कि वो बैठ के प्लानिंग कर रहा है बहन के साथ, कंस्पायर करेंगे, हम यूं करेंगे यूं करेंगे। ऐसे नहीं होता इमोशनल अब्यूज में usually people are just, these men are like that, they take it and that's why they keep blowing hot and cold। एक दफा कहेंगे I love you, they really mean it, and then the next minute they're abusing you and they really mean that, but it's not conspiracy, So you it's not think they're not planned, aware, they're not aware of it, yeah, they feel they're in the right, and Sherry seems to be aware of his exactly, behavior. that's what weakens the story। वही मैं कह रहा हूँ ना, because there are so many women who've been through it, so many people who've experienced it, Yeah. तो उन्होंने खुद ही इन्फर कर लिए सारे मैसेजेस। yeah ऐसा नहीं है कि प्लॉट आपको वो दे रहा है, समझें इस बात को। आप भी एपिसोड देखें तो अगर आप एक सेकंड के लिए सोच लें कि आप क्या टेक अवे करना चाहते हैं उस ड्रामे से, और ये देखें कि ड्रामा आपको क्या बता रहा है, तो शायद तब आपको लैप्सेस नजर आने शुरू हों। बिल्कुल ऐसे है। मूविंग ऑन टू, ऑल्सो आपने ये भी देख लिया कि इमोशनल अब्यूज इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, नताशा भी कर रही है अब्यूज बेचारा मीरब का, वो चला गया घर, अब कह रहा आई एम बैक होम, कहते और क्या करूं, तुमसे पूछ के आता मैं। हाँ था बंद, गुड है, अली सफीना ने अच्छी एक्टिंग अच्छी की। एक्टिंग की है। मूविंग ऑन टू आमना जी, गुम। गुम, अच्छा, सबसे पहले तो बहुत एक डिसअपॉइंटिंग बात है कि गुम की जो इस हफ्ते जो पहली एपिसोड थी उसमें आखिरी के 10-12 मिनट ऑडियो का इशू था, और वो 12 मिनट तक ऑडियो मेरे ख्याल में कोई पहले एक 31 सेकंड के पार्ट के लिए आई है, फिर अगेन 27 सेकंड पे कुछ 5-4 सेकंड के लिए आई है, और 10 मिनट तक ऑडियो ही नहीं थी। सो हम कैसे रिव्यू करें इस एपिसोड को? इट इज़ अनफेयर, इट इज़ आई मीन इट इज़, एंड मुझे इस बात के ज़्यादा दुख है कि मैंने ये एपिसोड 2 दिन बाद देखी, और ठीक भी किसी और ने 2 दिन तक ये एपिसोड अगर रही है यूट्यूब के ऊपर तो किसी ने क्यों एक्शन नहीं लिया ग्रीन की तरह? और मैंने जाके नीचे जब कमेंट्स देखे तो देयर वर कमेंट्स सेइंग कि यार कि देयर इज नो ऑडियो, व्हाट इज रॉन्ग विद द पूरे ऑडियो। एपिसोड में ऑडियो नहीं थी, 10 मिनट आखिरी। राइट, आपने नहीं देखी? मैं नहीं देख पाई, आप गुम देख नहीं पाई? मैंने सेकंड एपिसोड देखनी शुरू की थी, मैंने पहली एपिसोड नहीं देख पाई ठीक है। तो आई बिट्स एंड पीसेस में आई हैव क्वेश्चंस। ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कतन इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि गुम एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एक थ्रिलर है, एक मिस्ट्री है। उसमें अगर आप ऑडियो निकाल देंगे तो व्हाट आर वी टू अज्यूम? हम सिर्फ एक्शंस देख के तो हम नहीं बिल्कुल सही बता बात सकते है, ना। बिल्कुल हैविंग सेड दैट, मैंने क्योंकि सबटाइटल्स ऑन रखे हुए थे तो सबटाइटल्स चल रहे थे, बट अब मैं सबटाइटल्स के ऊपर बेस्ड अपना क्या रिव्यू दूं या क्या ओपिनियन दूं, तो इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मैं ग्रीन की टीम के से रिक्वेस्ट करूंगा, गुम की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस तरह के जो मसले अगर हो भी जाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड, हमसे ज़्यादा साउंड के मसले किसके होते हैं, जी, बट उनको रेक्टिफाई तो करें ना भाई। 2 दिन तक एपिसोड लगी हुई है, वहां पे कमेंट्स भी आ रहे हैं उसके ऊपर। इज नोबडी चेकिंग कमेंट्स ऑन दीज एपिसोड्स? इज नोबडी वाचिंग दीज एपिसोड्स? मतलब हैव यू गाइस नॉट वॉच्ड द एपिसोड बट नो व्हाट इज हैपनिंग? व्हाई कुडंट इट बी रेक्टिफाइड? व्हाई वाजंट द प्रॉब्लम फिक्स्ड? इट्स वेरी अनफेयर, नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। जो बात मुझे समझ आई सेकंड एपिसोड देख के वो ये थी कि उसको पहले मैं जो- पहले की समरी दे दूं आपको? हाँ बताएं। पहले में एसेंशियली ये होता है कि रायान घर आता है यहाँ पे, डिनर पे उसको बुलाती जो है, लास्ट एपिसोड के एंड में वो आ रहा हाँ, कि वो डिनर पे बुलाते हैं तो वो आता है यहाँ पे, एंड द डिनर गोज रियली फाइन। सो बेसिकली वो जो पूरी
जो ऑडियो मिसिंग थी वो डिनर पे थी। Right. तो डिनर पे जो बड़ी बहन होती है माया की, सारा आई थिंक, वो एक दो ऑफ सवाल पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या हुआ, इस तरह की चीजें। तो वो बाद में फिर माया उसको ये कहती है कि तुम क्या सवाल उससे पूछो, व्हाई यू मेकिंग हिम अनकंफर्टेबल, एंड शी सेज और क्या मैं पूछूं, Yeah. can't you see that he really likes you and you also like him and that's great, but I need to know more about this person. This is what I understood from the subtitles because yeah. audio तो थी नहीं Yeah. वहाँ पे। तो ये एक उनकी थी जो क्रक्स था पहली एपिसोड का, ज्यादा वहाँ पे यही हुआ। बाकी सेकंड एपिसोड आपने सेकंड देखी? में मैंने देखा कि उनको एक माइक्रोचिप मिलता है, मेमोरी कार्ड मिलता है। हाँ, बेसिकली जब वो उस पे गिरता है जी। अगेन खाने की, जब वो खा रहा होता है तो वहां पे उसका जो वो पास करते हुए कोई चीज, तो सालन या कुछ गिर जाता है शर्ट पे और बाजू पे। सो वहां पे जब वो अपने आप को ही इज क्लीनिंग हिमसेल्फ, कफ शर्ट का साफ कर रहा होता है, तो वो देखता है कि उसका वो जो बैंड होता है उसमें कोई है कुछ ऑप्शन कहीं पे मेमोरी कार्ड का। सो फिर वो अगले दिन आके वो मेमोरी कार्ड यूज करने का जी तरीका बिल्कुल वो देख लेता है देखता और पता यही चलता है कि जर्नलिस्ट का वो मेमोरी कार्ड होता है। सलमान से। सलमान सईद का उसने पूरी एविडेंस दी होती है कि जी ये हो रहा है, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। और वो पॉलिटिशियन जो होते हैं उनके खिलाफ, प्लेड बाय उस्मान पीरज़ादा, और का बेटा भी मुलविस है और इनको प्रोटेक्ट कर रहा है ये लॉयर, इनका लॉयर इहसान मलिक, जो मायाज और फादर, जिसकी डेथ में भी यही बंदा है हाँ, जिम्मेदार। सब कुछ बता देता है और आगे देयर आर एविडेंस एज वेल, है ना। या वो जाके माया को ये बात बताने लगता है, लेकिन फिर उसी मोमेंट पे उसको याद आ जाता है कि वो डॉक्टर है। और एक और बड़ी जो मेजर एक रेवोल्यूशन होती है वो ये होती है कि जो रायान के फादर हैं वो जिंदा है, प्लेड बाय मोहम्मद अहमद साहब। ये पहली एपिसोड में था, दूसरी में था। ओके, इंटरेस्टिंग। वन ऑफ द बहन का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, बहन का बहन इज डेड, वो नहीं, ये but तो the पता father कि is डेड, alive. लेकिन हाउ शी डाइड वी डोंट नो। नो इट्स एविडेंट अगले एपिसोड के प्रोमो में। मैंने देखा। She was so the thing with गुम now is unfortunately, जो मुझे लग रहा था, मैंने आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले बात की भी थी, कहानी उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है, which is quite predictable, कि जो बहन है उसको she was raped and she was पॉलिटिशियन सन murdered, yes, हाँ ऐसा लग रहा है, हाँ बिकॉज उसको अगवा किया जाता है, उसको Right. किया जाता है। एंड रायान ने अपना, आप देख भी रहे हैं, वो वॉल पे एक बनाया हुआ भी है एक जगह पे, आई थिंक वो उसकी पास्ट की एक मेमोरी है, वहां पे एक के वो क्रॉस मार देता है। और आई थिंक इस बार पहली या दूसरी एपिसोड में एक सीन था जहाँ पे वो एक बंदे को मार जला देता है, आपने शायद वो सीन देखा भी हो। तो एक बंदे को वो एक अपार्टमेंट में उसके ऊपर तेल छिड़क के और उसको जला देता है, और वो बंदा ये कह रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये हमीद ने किया था, विच इज द मिनिस्टर्स सन। या So Hamid is now in America. He's supposed to come back. तो ऐसा लग रहा है को, जो कि quite predictable है, कि जो बहन थी रायान की, she was assaulted, she was murdered. Right. तो in vengeance रायान ने फिर उनको मारा, एक बंदे को, दूसरा जो है वो जो उस्मान पीरज़ादा साहब के किरदार का बेटा है वो भाग गया वहाँ पे, और बीच में जो सलमान सईद था वो माया को इन्वेस्टिगेट कर कुछ कर रहा था। तो एक जो लड़ी रह गई है वो ये रह गई है कि जो सलमान सईद था उसने इसको क्यों दिया, जो भी दिया वो जो था एविडेंस, और ये जो था उस पॉइंट पे क्या कर रहा था। एक और भी तो मिस्ट्री थी ना, कि जो फुरकान कुरैशी का जो कैरेक्टर हाँ, है हाँ. उसके इर्द गिर्द भी एक मिस्ट्री थी कि भाई ये सही बंदा है, गलत नहीं, बंदा अभी है। तक नहीं। वो वॉलेट था ना, जो वॉलेट में, वॉलेट में हाँ, तस्वीर भी थी हाँ, सरा के किरदार की, हाँ. तो वो आई थिंक रायान का ही वॉलेट है। वो एक बार पूछता भी है उससे कि तुम्हारे पास वॉलेट था या नहीं था। अच्छा. तो वो अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट करता है, और जब वो जाता है उस मोहल्ले में, वहां पे उसको एक अंकल मिलते हैं, वो अंकल उसको बताते हैं कि इसके रायान के जो फादर हैं उनकी से तो मेरी पिछले साल बात हुई थी ईद पे या कुछ। तो हैंकी पैंकी नहीं है वो। नहीं, वो नहीं है, वो अपनी तरह। एक टाइम पे मुझे शक जरूर हुआ कि शायद ही आल्सो वर्क्स फॉर उस्मान पीरज़ादा's कैरेक्टर। लेट्स सी। हाँ, सीधा नहीं है वो कैरेक्टर। नहीं, बट वो जो इंटरेक्शन थी ना मोहल्ले के अंकल के साथ, वो थोड़ी वियर्ड थी कि अंकल ने उसको पूरी बात इनिशियली तो बता दी, बाद में पूछा कि अच्छा तुम कौन हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अब तो बता चुके हो भाई। मैंने कहा आपने फिर पहले पूछते ना सवाल कि भाई कौन हो तुम, क्यों पूछ रहे हो, क्यों बताऊं मैं तुम्हें। तो था थोड़े से एग्जीक्यूशन के लैप्सेस हैं, बट मोस्ट डिसअपॉइंटिंग बिट वाज देयर वाज नो ऑडियो, सो आई मीन व्हाट टू से। मूविंग ऑन टू आमना जी, मन्नत मुराद। हाँ जी, मन्नत मुराद की 2 एपिसोड्स। यस, सबसे पहले तो मैं इरसा गजल साहब के एक्सप्रेशंस को शाउट आउट देना चाहूंगा। वो जब भी रियलाइज करती है ना, क्योंकि आप मदर इन लॉज और फादर्स इन लॉ के साथ भाई एसोसिएट व्हेन शी रियलाइजेस ना कि माय सन इज अप टू समथिंग, जब वो वहां पे खड़ा रियलाइजेस कि बच्चा गया,
That was the realization. नहीं नहीं, जब वो खड़ा होता है यार, तो तो वही कहती ना है अभी कि तो ये झूठ कह रहा था बोले। कि ये खड़ा नहीं हो रहा, अभी तो ये उसको खड़ा हो ये रहा। एहसास हुआ कि झूठ बोल रहा था ताकि निकाह हो जाता है। हाँ, ये नहीं कि he's up to something, उसने झूठ बोला ताकि नो निकाह हो दैट जाए। he's up to something, कि ये झूठ बोल रहा है कि मेरे ये से। नहीं, ये गया लड़की के लिए, गया नहीं, आई थिंक बीवी का हो गया। आई थिंक शी इज थिंकिंग कि यार ये पहले से जानता है उसको, ये क्या है, ये क्या कुछ है, ये 2 वो नंबरी तो की है। दिमाग उसका काम कर रहा है कि पहले जानता है whatever, but her shock and all the in the 2 episodes, her absolute dismay and her shock is कि हाय मेरा बच्चा, बीवी आए हुए अभी 8 घंटे नहीं हुए, एक रात नहीं हुई और थल्ले लग गया, ये तो गया। अच्छा, आई डिसएग्री विद What यू। the hell is आई थिंक happening? इट्स नॉट दैट, इट्स दैट कि यार के इट इज अ मिक्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसबिलीफ कि ही लाइड टू मी, कि देयर इज समथिंग अप, ये पहले से इस लड़की भी को। है। आई थिंक इट्स मोर दैट एंड लेस ऑफ दिस, अच्छा, I think it's more this. बिकॉज ये तो शी थिंक्स शी विल कंट्रोल, दिस इज नॉट अ बिग I think it's कंसर्न। more this कि oh my god, मेरा बच्चा जिसको मैंने ऐसे पाला, पहली दफा जिंदगी में वो दरवाजे को कुंडी लगाता है माँ को निकाल के बाहर, and she's like कुंडी लगा बट दी। रिमेंबर द एक्सप्रेशन इज देयर, जब वो उसको जूस पिलाने की कर रहा होता है एंड शी इज हाँ। लाइक, ये इतनी क्यों। और फिर रिमेंबर वो उस कुंडी लगा के कहता भी है कि अम्मी को शक हो गया है, हमें थोड़ा सा आपस में डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, अम्मी डजंट नो कि हम और पहले वो से। कहती डिस्टेंस, अब शादी, हमारी शादी हो चुकी है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है वो है जरूर। अच्छा ठीक है यार, ऑडियंस पे छोड़ हाँ, दे। आप मुझे- बताएं, आपको क्या लगता है कि जो इरसा गजल साहिबा के चेहरे पे जो तासुरात एक्सप्रेशन थे, वो ज्यादा इस वजह से थे कि देयर वाज डिसबिलीफ एंड शॉक एंड डिसअप्रूवल के यार कि ये मेरे बेटा इज अप टू समथिंग, या ज्यादा इस वजह से थे कि उनको लगता है कि उनका बेटा जन मरीद बन गया है? जन मरीज बन गया है और गया, ये तो मोहब्बत में, दुल्हन की मोहब्बत में अपनी बीवी के, ये तो गया, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूंगी, अब ये मेरे हाथों से गया, ठीक। मेरे हाथों से गया ये बच्चा। मुझे नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने हाथ में, क्योंकि जब वो तबीयत खराब होती है रात को, तो मुराद एंड्स अप स्लीपिंग विद इन द मदर्स रूम, टांगे दबाते हुए। Yeah. वो उनको टेंशन नहीं है, Which was so weird. शी इज सिक्योर एज अ मदर। Which was so weird, man. No, she's not secure as a mother. अगर वो सिक्योर होती है एज अ मदर तो इतना उनको उस पे भी ना शक सुलह है होता। ना मुराद को। हाँ, बट शी इज लाइक कंट्रोल अपना एक्सर्ट कर रही है ना, वो तो पावर प्ले चल रहा हाँ, है। तो वो टेंशन नहीं उनको, उनको ये है कि इन्हें मैंने झूठ बोला है, तो बड़ा है। शायद आप ज्यादा समझते हैं, आपके दिल के करीब हो ये माँ ज्यादा, आई डोंट नो मैं क्या कह सकती हूँ। बहरहाल क्या कहना चाहेंगे, शुरू में जी बारात जाती है, वो घोड़े पे चढ़ता है, फिर उसको गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, फिर वो पहुंच जाता है वहां पे, फिर वहां पे हक महर वाला पूरा सीन होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि देयर आर सर्टेन थिंग्स अबाउट मन्नत मुराद दैट आर वेरी एंजॉयबल। फॉर एग्जांपल द होल play on the Punjabi family and the Punjabi wedding is very real. The way they sit, the way they enter, you know, the way they're all color coordinated. उनकी जो Same कपड़े outfit coordination होती है, वो बड़ी, ये चीजें बड़ी real हैं। बहनों ने काला पहना तो अम्मा ने लाल। अम्मा नहीं, सबके वेलवेट के जोड़े पे कड़ी हुई चादरें, you know, the way they're dressed, the way they are sleeping at night, कि you know शादी घरों में जिस तरह गद्दे बिछ जाते हैं और सब बैठ के गॉसिप कर रहे हैं और किसी की चाय बन रही है, ये वो बड़े मज़े के एनेक्डोटल किस्म के सीन्स हैं, ये मैं सिनेरियोज बड़े एंजॉय करती हूँ। लेकिन जहाँ तक लार्जर पिक्चर है ना, आई डोंट नो व्हाट टू थिंक ऑफ इट। आई डोंट नो, आई नो इट्स लाइक अ स्लैपस्टिक कॉमेडी। इट इज़ अ स्लैपस्टिक कॉमेडी। आई मीन आपको बिल्कुल कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, क्या आपको मतलब है कि अपनी अकल बाहर छोड़ के अंदर आना है मन्नत मुराद के देखने कई सीक्वेंसेस, मतलब पूरा घोड़े पे बिठाना, फिर उसको घोड़े पे गिर जाना, फिर पूरा हक महर वाला सिनेरियो। अब आप कहेंगे जी ठीक है, बड़े भाईजान कह रहे हैं कि अच्छा आपने जहेज कराया था तो मैं अब हक महर पे करूँगा, मगर इट वाज सो, जितना चीप पिछली बार उनको दिखाया उतना चीप इनको दिखा दिया। इट वाज सो लॉन्ग ड्रॉन और अनबिलीवेबल, और मैं बार बार देखते हुए कह रही हूँ कि यार ये यहाँ बेटी दे क्यों रहे हैं, इतना फर्क है इन दोनों फैमिलीज में। एंड देन ऑफ कोर्स बॉटम लाइन यही है, व्हाट डज मन्नत सी इन मुराद? इट्स अ रमजान ड्रामा गॉन बैड। ये आप सोच के आए थे कि आपने आज ये नहीं, comment मैंने किया? अभी सोचा, ओके। क्योंकि वो इन पार्ट्स रमजान बैकग्राउंड म्यूजिक और वो सब ऐसा चलता है दिखाने के लिए कि ओ फन एंड गेम्स, ओ हंसी मजाक ये वो, और साथ ही वो इस तरह की चीजें मुझे। नहीं यार, आपने हीरो को दिखाया है कि ही इज ओके विद हिज मदर आस्किंग, मुंह खोल के फाड़ के आप जहेज मांगते हुए, यू हीरो इज ओके विद दैट। व्हाट इज दिस कॉमेडी? एम आई सपोज्ड कॉमेडी ना, जब वो कहता है कि मैंने नहीं उठना, फिर वो कहती क्यों नहीं उठना, फिर वो एकदम कहता है और मेरी कमर में क्यों और फिर दर्द उठ जाता लग रहा एकदम। हूं, और फिर वो तो वो आपने कॉमेडी, वो पार्ट तो कॉमेडी हो गया, मगर जहेज वाला पूरा सिनेरियो जो है वो, मैं शुड आई टेक दैट एज कॉमेडी? टेक इट लाइटली, टेक इट लाइटली। इट्स अ ड्रामा यार, इट्स मेंट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस।
नहीं यार, कहीं तो फिर सही गलत खाता है। नहीं भाई क्या करें। नहीं हमने मुझे नहीं मजा आया वो सीन का। मुझे पूरा हक महल का भी नहीं मजा आया। नहीं बैठ नहीं रहा, मैं तो बैठ नहीं रहा, समझ मतलब रहा हूँ इसमें कि क्या क्या। और ये कितने क्यूट हमारे जो मौलवी साहब हैं, ये हर ड्रामे में यही होते हैं। उन्होंने कहा मैंने एक और ड्रामे में और निकाह ये पढ़ाना। हर ड्रामे में यही कहते हैं कि मेरी 2-3 निकाह मैंने और करा उन्होंने कहा मैं दूसरे ड्रामे के निकाह के शूट पे जाना है भाई, जाना तो खत्म जल्दी करो। निपटाओ। नहीं मतलब ये पूरा हक महल का चल रहा है, नाम मुराद अच्छा कुछ वो बोल निकाह रहे हैं। नामा ये नए स्टाइल का मैंने देखा है, मैंने या भी ये देखा भाई, आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे भी नहीं कभी देखा ऐसा कि फ्रेम ये तो हुआ हुआ पूरा है। फ्रेम पे था सिग्नेचर, मुझे नहीं पता भाई, मैंने मैंने कहा तो कि तो 5-6 सफ़े होते हैं निकाह नामा निकाहनामा तो मैं के। और तरह का हमने जो साइन किया था, हमने भी कुछ ऐसा ही नहीं साइन किया ये था। मैंने नया देखा है। हो सकता है कोई नई स्टाइल आ गई हो कुछ चीजों की। मगर अब बड़े भैया की और अम्मी जी की फुल फ्लेज लड़ाई चल रही है, ये कैसे रिश्ता कैसे बन गया? अच्छा एक बात बताएं, अब ये आप सबूर वाला पार्ट अभी डिस्कस करना चाहती हैं, हॉट बाइट्स में करना चाहती हैं? इसकी रेलेवेंस तो बन रही है अभी, क्योंकि निकाह नामे में मैंने ये भी तस्वीरें देखी हैं कि जहाँ पे मन्नत मुराद की शादी और सबूर और अली की शादी बैकड्रॉप भी सिमिलर था। फिर सब क्या जो हो गया यार? इकरा की जो पूरी लुक थी वो तो बहुत सिमिलर थी अच्छा सब। इकरा इतनी हसीन को लग रही थी, ओह माय गॉड। बट वो सबूर कह रही है ना मेरा बिग डे कॉपी किया है। क्या मैं इस पे बोलूं? अभी नहीं बोलना चाहिए, हॉट बाइट्स में नहीं बोलना मैं बोल चाहिए। सकती हूँ अभी भी। आप क्या कहते हैं? देखिए आउटफिट बहुत सिमिलर था, या शायद वही आउटफिट था फायजा सकलैन का। आप कहती हैं तो पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने पढ़ लिया था सबूर ने क्या जी, बोला? मैंने सबूर का पढ़ लिया था। उन्होंने कहा मेरा बिग डे जो था, इतने अरमानों के साथ मैंने ये जोड़ा बनवाया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने एक्चुअली आई वांटेड टू कॉल फायजा एंड आस्क हर अबाउट द आउटफिट। फायजा ने तो शेयर कर दिया ना स्क्रीनशॉट। क्या उन्होंने क्या लिखा है? पहले सबूर पढ़ के सुनाना चाहिए ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस। बट ये ड्रामे से आपका रिव्यू हट गया है। तो इसको फिर आप चले hot हॉट bites के बाइट्स लिए, पे, चले हाँ। हॉट बाइट्स पे, ये हम हॉट बाइट्स पे डिस्कस करना। हाँ तो बैठ नहीं रहा कि मुझे यही बार बार ख्याल आ रहा है कि यार इतने कल्चरल डिफरेंसेस हैं, दे आर सो डिफरेंट एज अ फैमिली, व्हाट आर दे, व्हाई आर दे सो लाइक ईगर टू गेट मैरिड? क्या इनको एक दूसरे में नजर आ रहा है? कुछ भी ऐसा नहीं दिया हमें, कुछ ऐसा यार है यही ही ड्रामे नहीं। होते हैं ना, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या हो भाई? यही ड्रामे होते हैं, यही तो ड्रामा है कि उन्होंने दो अलग अलग उसमें यही तो ड्रामा बनाया उन्होंने। सर लेट मी टेक योर मेमोरी बैक टू अ स्मॉल ड्रामा, छोटा सा एक क्या हकीमी सा नाम था? ड्रामा था। दो छोटे छोटे उसमें एक्टर थे, कौन थे? सनम सईद और फवाद खान के नाम के एक एक्टर हैं, कभी नाम सुना होगा आपने भी। जिंदगी गुलजार है। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। उसमें भी लड़का लड़की के कल्चरल डिफरेंसेस भी दिखाते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सोशल सोशल सोशो बैकग्राउंड इकोनॉमिक। फर्क हैं, उनकी मॉरल एथिकल कॉम्पस फर्क है, उनकी पर्सनालिटीज फर्क हैं, लेकिन आपको वो मोमेंट्स ऐसे देते हैं कि आप कहते हैं कि यार हमें इन दोनों को इकट्ठा देखना है, भले ये कितने फर्क हो। यार एप्पल्स एंड ऑरेंजेस यार। हाउ जी कैसे? यार वो एक डिफरेंट वक्त की कहानी थी, ये डिफरेंट वक्त की कहानी है। नहीं यार, रोमांस हर एज का ऐसा ही एक ही होता है, रोमांस हर एज का ऐसा ही होता है। यहाँ आप कहते हैं कि यार यार यहाँ पे आपने फट्टू दूल्हा दिखाया ना। आपने ऐसा वैसा फट्टू दूल्हा दिखाया है। आप फट्टू दूल्हे नहीं चाहिए भाई, नहीं हाँ नहीं ये नहीं, अब आप इख्तिलाफ करें कि फट्टू दूल्हों की कहानी नहीं सुननी नहीं हमने। सुननी हमें फट्टू फट्टू दूल्हों ठीक है की। वो आपका राइट है, हाँ। लेकिन उन्होंने आपको कहानी एक ऐसी दिखाई है, फट्टू मैं दूल्हा बिल्कुल है ठीक कह रही हूँ, मैं और आपकी बात दुल्हन समझ जो है रही हूँ। वो है वो कहती मैं बात करती हूँ हाँ, जाके, मैं वो मैंने कहा कहती- खुदा का वास्ता तू तो बैठ जा। हाँ। अच्छा एक बात बताएं, वो दूल्हे का दोस्त कहाँ था पूरे शादी कोई में? नहीं था, उसकी डेट्स नहीं थी, दूल्हे के दोस्त की डेट्स नहीं थी। और जो अजरा है, माँ ने देखा नहीं अजरा को? हाँ ये देखा तो, था ना तो पिछले फिर क्या किया उसने देख के? पता नहीं। वो तो समझ रही थी ना कि अजरा डोरे डाल रही है मुराद पे, हाँ तो क्या हुआ लेकिन उसको? दूल्हे का दोस्त कहाँ था? अगले दिन फोन पे तो था अवेलेबल, वो कराची की डेट्स नहीं थी। I mean, the highest point in Mannat Murad for me is Ikra Aziz. Ikra Aziz is so good and she's so beautiful. एक तो पहले वो जो माइयों का जोड़ा होता है, which was Anomi and Sara, Anomi and Sari Lehenga. You know, the way it had been styled, Lehenga खूबसूरत, but the way the styling, headband, bejeweled, jewelry, oh, कोई हसीन लग रही थी इकरा। और उसके बाद शादी पे, my God, that deep red lipstick and those beautiful eyes, liner and the jewelry and the झूमर and it's like अच्छा oh हमने my ये God. तो सारी नहीं बातें मैं तो इसलिए देख रही थी, मैं कहा oh my बात God, सुने इतनी ना। ये हसीन को लड़की है, अरे ये सारी इतनी बातें को हसीन लड़की है। अगर इतनी हसीन दुल्हन हो कमरे में और दूल्हा जाके सो जाए अपनी माँ के साथ, तो दूर फिटे मुंह उस दूल्हे का। मुझे ऐसा दूल्हा नहीं देखना जिसको दुल्हन इररेसिस्टिबल ना लगे। आई एम सॉरी, ठीक है। दुल्हों को दुल्हनें इररेसिस्टिबल लगनी चाहिए। और जहाँ जहाँ लोग ये समझते हैं ना कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आई नो देयर आर ग्रेट वैल्यूज फॉर जॉइंट फैमिली एज वेल, स्पेशली शुरू में, लेकिन शादी की रात को दूल्हा दुल्हन को रुखसत करके होटल। घर नहीं लाना चाहिए जी, कहीं और आप चले जाएं, घर मत आए।
कहीं चले जाएं, घर मत आए। हम भी अपने घर नहीं गए थे। एनीवे किसी ने पूछा है आपसे? मैं कहा वैसे बता दूं जी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा था, देखें ये आपकी बात सर आंखों जी। पर, और इसमें कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। इकरा वैसे भी बहुत हसीन है, वो ओहो, ड्रामे में लग भी बहुत हसीन नहीं हाँ। थी, वो ड्रामे में जो किरदार निभा रही हैं वो भी बहुत बहुत जबरदस्त अच्छा, निभा रही जी। हैं, सब बहुत अच्छा है। मैं जो देख रहा था, हमारे रिव्यू के ऊपर भी कुछ फीडबैक आया, वो ये कह रहे हैं कि यार somehow इकरा इज नॉट एबल टू एस्टैब्लिश हरसेल्फ एज अ रोमांटिक लीड। आपका क्या इस बारे में ओपिनियन है कि यू नो एज अ, क्योंकि जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनकी बिल्ड हुई थी फरहान के साथ सुनो चंदा में, दैट वाज ग्रेट, बट उसके बाद से अब तक मगर सुनो चंदा के भी फन यही था कि उनका कांस्टेंट तकरार था पहले, कॉन्स्टेंटली उनकी छिब्बियां और बट लड़ाई। वो वाला हाँ। यहाँ पे आप देखें या पिछली इकरा के कुछ देख लें, आई मीन इवन रकीब से वाज लाइक अ कैरेक्टर Yeah, परफॉर्मेंस, उसमें रोमांस ऐसा वैसा नहीं था। दैट मे बी द केस। तो यहाँ पे जो मैं फीडबैक देख रहा था, मैंने उसी बात मैंने सोचना शुरू किया कि मे बी दैट्स ट्रू, आई डोंट नो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि जो पिक्चर्स मैंने देखी तला ने शेयर की था, उनमें इट्स यू नो दे लुक Now नाइस। I won't even say that Tala's not done a good job. He has the character that has been written. This is who he No, is. he's performed really He's well. performed it very well. यही है मुराद, यही है मुराद, जो कि 4 बहनों के और माँ के नीचे दबा हुआ पला है बेचारा, बाप की जगह ली है उसने। और कभी-कभी सांस लेने की कोशिश भी करता है। कभी-कभी सांस लेने की कोशिश करता है, कभी-कभी डांस भी कर लेता है। यही है मुराद, और बड़ा अच्छा उसने मुराद को एग्जीक्यूट किया है। मगर इट्स जस्ट दैट कि ये कैरेक्टर क्लैश है, दोनों कैरेक्टर्स क्लैश है। इसेंशली इसलिए कि आपने शुरू में हमें बताया नहीं कि इनका मोहब्बत किस पॉइंट पे हुआ, कब उन्होंने फैसला किया हमने शादी करनी है। और दूसरी बात यह कि आपने कभी इस बात को एड्रेस नहीं किया कि व्हाट डज मन्नत सी इन मुराद। मन्नत एक इंडिपेंडेंट फेयर्स लड़की, अब हम सिर्फ ये कहेंगे जी वो क्यूट है इसलिए इसको पसंद है, इट डजंट वर्क। नहीं मतलब है कि somebody like a मन्नत, जो कि वी नो के रिश्ते ठुकराती आ रही थी, ठुकराती आ रही थी, उसने मुराद में क्या देखा? वो जो शुरू में एपिसोड में आपने दिखाया फ्लैशबैक के, मुराद ने कहा कि हाँ तुम अपनी मर्जी कर लो, इस तरह का कुछ, उस वजह से वो इम्प्रेस हो गई। क्या था, व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन मन्नत रियलाइज कि यार ओके दिस इज द पर्सन आई वांट टू मैरी एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद। ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये एक बड़ी बात होती है। व्हाट वाज दैट मोमेंट? यू नॉट एक और छोटा सा ड्रामा था यार पास में, छोटे से 2 हमारे मुल्क के अदाकार, क्या नाम थे उनके? मायरा और फवाद के अच्छा। नाम थे जी। उनका एक छोटा सा ड्रामा था हमसफर के नाम पे। अच्छा, आपको एग्जैक्ट सीन याद है जब वो बाल को यूं करता नहीं, वो तो बाद में आता है ना, फिर? जब वो फ्लिप होता है, जब वो स्विमिंग पूल के पास बैठ के रो रही होती है, that's when you know he flips and his heart goes, and you know immediately that okay, now it's like they're not going to be repelling each other now. And he's suddenly fallen. This is when he's fallen for her. You need to see that moment when you see your hero heroine falling for each other. यार ये दूसरी तरह का ड्रामा है ना, वो वक्त और था, ये वक्त और है। Yes, ये फटू दूल्हा ना यार, रोमांस एक जैसा ही होता है यार ये फटू दूल्हा है भाई। मैं अब ये आपको नई नोयत की स्टोरी पहली बात तो ये कि यार दूल्हे को कोई, हीरो को कोई हक नहीं है फटू होने का। पहली बात तो ये है यार, इस तरह तो आपकी मर्जी से कहानियां बताएं फिर। नहीं यार, हीरो नहीं चाहिए। नहीं, मैं नहीं, कहानी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बस ऐसे आप दिखाएं यार, कहानियां जरूर बताएं। ये बात आप करें। हाँ, आप बोले मैं देखूंगी नहीं। मैं कौन होती हूँ कहने वाली कि कोई कहानी कैसे लिखे? जरूर आप ऐसी कहानी लिखें। मैं ऐसे दूल्हे में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ who finds his wife resistible on the wedding night. I cannot endorse such a। यार वो आया तो था, उसने कुंडी भी लगाई, वो भी इतनी हसीन दुल्हन, आया था उसने कुंडी भी लगाई थी कुल 3 मिनट के लिए। और वो कह रहा था कि मैं बड़ी खुश हुई जब वो जूस लेके आता है उसके लिए, फिर वो चाय पिलाता है। मैंने कहा चलो शुक्र है we're getting somewhere, but नहीं, कुंडी लगाई तो सही थी उसने। और यार उसके बाद की होया फिर उसने वो मुंह दिखाई भी देने लगा था घूंघट में से सब कुछ। तो अम्मी की तबीयत अब खराब हो गई तो वो क्या करता? अम्मी ने फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया कि पुत्र तू चले हैं फिर। ये तो अम्मी का कसूर हुआ ना, दूल्हे का। अम्मी ने इसलिए नहीं किया कि she feels that he's up to something, इसलिए किया because she's threatened by the दुल्हन। हाँ वो तो वो कान जो भरती है। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि पूरा जो अम्मी का शक का है ना सारा, it's more because she's threatened। वो भी है, दोनों चीजें कि लड़का गया मेरे हाथ से। मेरे नजर में ज्यादा वो। Anyway, it was interesting. This I didn't find it interesting. I found it very tedious. I'm telling you, the only thing I find interesting is the way Ikra looks, and she's spectacular. That's the least point. Exactly. यार पूरा हक महर का इतना लॉन्ग ड्रॉन सीक्वेंस था, उधर से वो चीख रहे हैं कि हमारी बेटी है ना, हमारी इज्जत जा रही है, आप जाने दें, हम नहीं रहेंगे। अच्छा, और फिर 8 लाख में मान जाते हैं। बात ये है कि मैंने जितना मन्नत और मुराद के ऊपर फीडबैक देखा अपने रिव्यूज के ऊपर, people are saying the same thing. It's not that people are actually
यार मैं चाहूंगा इस बार कमेंट सेक्शन में जो लोग मन्नत मुराद को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इन ऑल सीरियसनेस में ये बात कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड, आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या बात अच्छी लग रही है, आप क्या इंजॉय कर रहे हैं मन्नत मुराद में, जो जिस तरह का दूल्हा दिखाया गया है आपको वो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। एंड दिस इज नॉट टू से कि एक्टिंग तला की या नहीं, इकरा नहीं, का, वो हम acting इस्टेब्लिश में, कर हाँ। चुके हैं कि इकरा बहुत जबरदस्त लग रही है, हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया है, तला बहुत अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया है, बट जो किरदार दिखाए जा रहे हैं हमें, जिस तरह से आपस में उनका रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लोग अवाम है यार, आप लोग फैसला करती हैं, कमेंट सेक्शन में बता दें, जी। ठीक हो गया। और आप बोले मैं और उनसे कह देता हूँ यार वो बता देंगे नहीं, हमें। मैं भी कह सकती हूँ। कह दें आप, कह ना आप, आपका हाँ, क्यों नहीं, मैं चाहती हूँ लोग बताएं कि उनको क्या अच्छा लग रहा है मन्नत मुराद में, बिकॉज दिस इज टू मच ठीक है। ऑल ओवर आप लोग आमना की बात से, मैं आमना की बात से वैसे एग्री करता हूँ, आप हमारी बात से एग्री करते हैं नहीं करते, आपका अपना पर्सपेक्टिव है, शेयर करें ताकि हमें कभी कभी कुछ ड्रामों में फंस जाते हैं, हम नहीं समझ पाते यार कि क्या हो रहा है क्या है, तो आप डिकोड करें ना हमारे लिए यार, बताएं हमें कि आपका क्या ओपिनियन है, शायद उस वजह से हम जरा उन एक बेहतर क्लैरिटी हमें मिल सके। अब एक ड्रामा ऐसा है जिसका पिछले हफ्ते तक मैं कह रही थी, नहीं करंट, अभी हम उसकी तरफ जा अच्छा, रहे हैं, पिछले हफ्ते तक मैं उस ड्रामे को कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि जो लीडिंग लेडी है वो इस कैरेक्टर के साथ जाए, और ये हो, यही इक्वल है, यही एक दूसरे के अपने साथ बॉय को क्रेडिट दे दिया सूटेबल है, यही है, यही है, यही है। एक एपिसोड में उन्होंने ऐसा बिल्डअप किया है कि आप कहते हैं यार ये जा ही नहीं सकती है। आ जाए फिर काबली पुलाव की तरफ। देखा तो यूं देखा मुसव्विर हो गई। बॉय को भी क्रेडिट दे। क्रेडिट जी आपको, ऐसे 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 मैंने आपको कहा, आपने कहा नहीं बारान के साथ, मैंने कहा नहीं यार हाजी मुश्ताक के साथ। हाँ यार सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जफर मिराज को, जी और फिर मैं काशिफ निसार को अप्रिशिएट जी। करना चाहता हूँ। ये सेकंड लास्ट एपिसोड जिस तरह से खुली है ना, उफ। जिस तरह से एग्जीक्यूट इज द वर्ड, जो हम जैसे आपकी मर्जी में कह रहे थे यार, आप देखें कि पहले सेकंड से लेके 37 मिनट की है इस बार एपिसोड थी, उन्होंने हमें एम्पल टाइम दिया, एम्पल सीन्स दिए, टू ऑब्जर्व, absorb and understand and enjoy. the हाय, complexity of the story yet the simplicity of emotions. मैं सोच क्या मैंने कहा, मुझे लेकिन खुद आपने गलत कहा है, simplicity of emotions नहीं थी, the complexity of emotions थी। नहीं, simplicity of They are emotions. there, the complexity of emotions has been simplified for you. The simplicity of emotions, आखिरी का एंड में हम चले जाएंगे इसलिए मैं अभी उस पर नहीं जाता, बट जहाँ से कहानी शुरू होती है कि हाजी साहब फाइंड्स आउट कि ये सारा सीन हुआ है। यार अब्दुल्ला फरतुल्ला, ओहो, कोई परफॉर्मेंस भाई। लव यू यार अब्दुल्ला फरतुल्ला। एंड मैं ऑफ कोर्स, अगर कभी कोई अवार्ड शो करे जिसमें सपोर्टिंग एक्टर्स की कैटेगरी हो, हाँ सरे फहरिस्त ही होंगे। अब्दुल्ला फरतुल्ला। एब्सोल्युटली। यार देयर इज अ वे दैट जब वो मोबाइल देख लेता ना कि ये कॉन्वर्सेशन हुई है, द वे दैट ही, वो क्या, मैं उसको क्या, वो इस इमोशन को क्या बोलेंगे जो उसने, मुझे तो नाम भी नहीं पता उसको, Discomfort, his the way that he's emoted that scene, it was so well done यार। मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार कि ये बंदे ने कैसे कर लिया, ये जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से beautiful. एंड ही डजंट मेक आई कांटेक्ट, जब हाजी साहब पकड़ते हैं ना, No. देख वो नहीं देखता, नहीं देखता। वो शर्मिंदा है, वो नहीं देख पा रहा। Yeah. एंड इत्शाम भाई के ऊपर भी हम आते हैं अभी, बट अब्दुल्ला ने वो जिस तरह से वो सीन किया है और जिस तरह से वो साइड पे हुआ है, जिस तरह से, ऐसे नहीं होता है कि यार कि जमीन फट जाए और मैं अंदर चला जाऊं। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे यू कैन सम अप दैट इमोशन दैट ही इज फीलिंग was so very well portrayed. And when Haji Saab leaves, he sits down and like अपना सर पकड़ के, beautifully done यार, Absolute beautifully done. resignation. It's like, you Credit know, to मैं- अब मैं Kashif क्या Nisar करूं? for getting that performance out of Abdullah The Farooq. casting is so good. Well Credit to done. Kashif Nisar for the casting. उसके बाद आप अगले सीन पे, हर सीन पहले से बेहतर। अगला सीन जब बारबीना कहती है ओए होए होए, कि मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी, टांग पकड़ लेती है। हो यार, मैं नहीं सबीना, जाऊंगी। सबीना के लिए तालो। सबीना ने तो मतलब अपने आप को एस्टैब्लिश करा लिया भाई कि वो तो ए लीग में चलेगी अब। Absolutely. If ever there was an award show with the best actor female in a lead role, तो सबीना। उसमें सबसे पहले नाम। Absolutely. Award winning performance. यार जिस तरह उसने पैर पकड़े हैं, वो क्या मैंने नहीं जाना, और वो तो बहुत अच्छा था। उसके बाद जब सब बैठे में तो वो बेड पे बैठ के वैसे रोना शुरू कर देती है। हाँ। यार it was brilliant performance again। काशिफ निसार को बहुत क्रेडिट सबीना से ये परफॉर्मेंस निकालने के लिए। और फिर आप आ जाए शाम भाई पे। If there was ever an award show best actor in lead role, my God.
Again, my question, the complexity of emotions between all three of these characters has been simplified for you. मैं आपको बताऊंगा ये इमोशन सिंपल क्या है, लेकिन आप एहतशाम भाई को वहां पे देखें बारान के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन, यहाँ पे देखें, अच्छा इन दैट मोमेंट ना ही इज परफॉर्म दो सीन्स इन अ वे कि मैं जब देख रहा था मुझे नहीं पता था आगे क्या चल रहा है हाजी मुश्ताक के दिमाग में, मैंने कहा यार ही इज नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ लाइन, बिकॉज इफ यू पुट योरसेल्फ इन दिस पर्सन्स शूज कि वो उसको पता है वो इनसिक्योरिटी भी है कि वो बड़ी उम्र का है और इतनी खूबसूरत लड़की जिसके ऊपर दुनिया मरती आ रही है और वो देखता आ रहा है कि ही प्रॉब्ली डजंट डिजर्व हर, और अब उसका मियाँ है पिक्चर में, तो वो यही सोचेगा ना कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, कोई दहशतगर्द है, ये क्या है, बिकॉज ये मेरे साथ क्यों शादी करेंगे, बिल्कुल इससे ना क्या चाहिए तुम्हें मेरे से, वो कहती है एक जोड़ा कपड़ों का और 2 रोटी चाहिए और क्या चाहिए, एंड ही डजंट, when you feel that he is not believing her, it makes sense to you. Yeah. You're not despising Haji No, Mushtaq. you're like, you know, he उसकी नजर में ये झूठ बोल रहे हैं इतने हफ्तों से, they're together for so many weeks, you know. His emotions are believable. Yeah. Because you like, yeah, इस तरह की सिचुएशन में हाजी मुश्ताक जैसा आदमी या कोई भी आदमी इसी तरह रिएक्ट करेगा, और लोग तो और बुरे तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो तो मार देते हैं, वो तो सीधा जैसे पिछली बार बारान भी कहता है कि वो अच्छा आदमी, उसने हमें मारा नहीं है, कोई और होता तो हम मर चुके होते अब तक, वो तो गोली मार देता है या छुरी मार के उसको जिब्बा कर देता, जो भी कर देता, बट वो हाजी मुश्ताक का एक ठहराव और एक हो कि यार जस्ट पैक योर बैग एंड लीव, मैंने बोल दिया तुम्हारा छोटे भाई को पता नहीं क्या हाजी मुश्ताक को है, छोटे भाई को मार देते हैं, बट इज लाइक मर गया वो तो तुम जाओ। अच्छा फिर आप उस सीन पे आए, नादिया अफगन के लिए तालियां, ब्यूटीफुल यार, क्रेडिट टू काशिफ निसार, नादिया अफगन से जो परफॉर्मेंस, I love the way that they've redeemed Shamim, you know, कि जब उसने वो सीक्रेट आके निकाला, आपने हर एक ने कोसा, हम सब ने कि यू नो ओहो होगी कर दिया, हाजी साहब ने भी कहा कि मैं कभी तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, बट शी इज रिडीम्ड हरसेल्फ, बिकॉज ये इतना बड़ा जो था राज वो उसने रखा और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको आगे तक कराया, यू नो, बिकॉज शी वाज सीइंग कि होना क्या चाहिए, एंड देन शी ब्रॉट बारमीना बैक टू हिम, she has brought him her back. इतना खूबसूरत वो सीन, और नादिया अफगन ने उसको जिस तरह से परफॉर्म किया, एहतशाम भाई बैठे हुए सिर्फ सुन रहे हैं, एंड इट्स द वे दैट हाजी मुश्ताक इज अब्सॉर्बिंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन, है कब्र पे, हाँ कब्र पे, the way that it is like, you know, expression, a single expression on his face, he's just listening to her. I'm like, yeah, what performance, and you see एक कीड़ा था जो उनकी एक बाल ऐसे नादिया अफगन का एक बालों की एक लट थी, उसके ऊपर एक कीड़ी सी ऐसे जा रही है, रेंग रही है, and you like this is also natural कि वो कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं और एक कीड़ा से ऐसे बाल पे जा रहा है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर ने कट कर दिया हो या बोला हो वो कीड़ी साफ करो या क्या जो भी, it was so organically, like, you know, brought to you, and you like, yaar, again credit to Zafar Miraj and Kashif Nisar, जो ज़फ़र मिराज ने जो लाइनें लिखी हैं, जिस तरह से ये कहानी बुनी और जिस तरह से ये कहानी खुली और जिस तरह से काशिफ निसार ने एग्जीक्यूट किया, and then my god the last sequence, no, the sequence between Baran and Haji Saab, then जो flip sequence होता है, वो कहता है वो चली गई है, वो जब बरबीना मिल नहीं रही होती, अच्छा नहीं उससे पहले there is a यही sequence, no there is a scene दुकान में when बारान enters the frame and बारान का रिफ्लेक्शन आप देखते हो शीशे में, एंड यू लाइक कि अच्छा ये शीशे में है तो ये शीशे उस तरफ है, ये क्या है इधर से आएगा, बट वो उधर से नहीं आता, वो इधर से चल के आता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेम बाय काशिफ निसार, डिड यू नोटिस? सो व्हेन जब वो उसको पैसे देते हैं, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे वो प्लीज, बल्कि सारी जगहों पे चले, यहाँ पे स्पेसिफिकली वो शॉट चले जहाँ पे पहले आप देखते हो शीशे में रिफ्लेक्शन नजर आ रही होती है बारान की, the way that he conceived that shot, and then बारान यूं ऐसे चल के आता है, and you like, well, what an interesting shot, because वो आता है, वो अपनी वेस्ट कोट ऐसे ठीक करता है, so there was attention being paid कि यार कि ये हम उसकी रिफ्लेक्शन दिखाएंगे ग्लास में कि वो आया है, वो वहां पे खड़ा हो गया, वो अपनी वेस्ट कोट ठीक है, फिर वो फ्रेम में एंटर हुआ, ब्यूटीफुल फ्रेमिंग यार, और फिर वो आता है और वो तनख्वाह देते हैं, वो कहता है कि ये मेरा हक है, 1.5 महीने की तनख्वाह, ये में नहीं, वो कह रहे 2 टिकट है बेटा, उसको भी लेके जाओ, और फिर आप उस सीन पे आए। ओह अल्लाह, वो इतना जबरदस्त सीन था, वो जब गुस्सा करता है, कहता है वो क्या करती, और तुम उस पे शक कर रहा है, तुम उसको कह रहा है कि पुलिस के हवाले कर देगा उसको, तुम क्या टेररिस्ट के रजिस्टर कर देगा, और वो क्या करती, यही उसने यही करना था उसने। फिर शमीम आती कहती तुम दोनों को छोड़ो, तीसरे के साथ भाग गई हो, कहते यार मैं उसको डाउट नहीं कर रहा था। ओए ओए एहतशाम भाई, लव यू एहतशाम भाई, तालियां। Then that monologue, an entire like
monologue in which she says कि मैं अगर ये ना करता तो वो कभी ना जाती. So that is the simplicity of an emotion. कॉम्प्लेक्स इमोशन नहीं है, वो सिंपल इमोशन है कि ये लड़की है और मुझे पता है ये अपने शौहर जो कि हमें लग रहा था मर गया है उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है. हाउ एल्स डू आई सेंड हर विद हिम? आई हैव टू बिकम इविल. कुर्बानी का इमोशन से ज्यादा सिंपल इमोशन कौन सा है? सैक्रिफाइस ने कहा मैं अपनी मोहब्बत सैक्रिफाइस कर दूंगा. लिटिल डिड ही नो कि नहीं, वो तो भूल गई अपने हस्बैंड को. वो मोहब्बत, ये वाली मोहब्बत सुपरसीड कर गई है उस And मोहब्बत. somewhere in this episode you realize that अभी तक आप सोच रहे थे कि नहीं यार वो बोली उसकी मैंने तो ये कहा था ना कि जुबान एक बोलते हैं, बारान और बारबीना एक इलाके के हैं, उनका कल्चर एक है, एक दूसरे को समझते हैं, फर्स्ट लव है, असल प्यार है, they deserve to be together. But gradually through this episode you realize that what Haji and Barbina have, that level of respect, और by the way reverence flip हो जाती है यहाँ पे. अभी तक आप देख रहे थे कि बारबीना एब्सोल्युटली वर्शिप्स हाजी, अब आप देख रहे हैं कि वो रेवरेंस फ्लिप हो गई है बिकॉज जितनी वो ऑनरेबल है और जितनी वो अपराइट है वो हाजी फील्स द सेम रेवरेंस फॉर बारबीना. वो आपको नजर आता है इस एपिसोड में और आप कहते हैं नहीं यार इनके बीच में जो है ना रिस्पेक्ट, वो उससे उसके बाद प्यार की कोई कीमत नहीं है. देयर आर टू थिंग्स, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, एंड दे हैव इट लाइक इम्पेकेबल trust and respect between them. There is nothing beyond that. While I agree with you, I also slightly disagree with you क्योंकि यहाँ पे प्यार भी बहुत ज्यादा है. हाँ. हाजी मुश्ताक और ये प्यार मुझे लगता है इसके डेवलप होने की वजह ये थी सर्कमस्टांसेस जिससे ये दोनों गुजरे हैं एक साथ. सो बारान के साथ ठीक है मोहब्बत थी, सब कुछ था, बट जितना टफ टाइम उसने हाजी मुश्ताक के साथ देखा है और उस टफ टाइम में बिकॉज हाजी मुश्ताक वाज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट सपोर्ट. ये प्यार जो है ना it is bred out of respect and trust. No, it's bred out of the fact that he's protected her. So that is trust and respect. Respect ना? is something वो else. प्यार was bred out of youth, hormones, Yeah, that all was- of that. that you was know, love. वो love था. Young love. Hot-blooded young love. This is bred out of trust and respect and भरोसा, और ये बहुत वैल्यूज होती हैं इन चीज़ों की. प्यार है लेकिन इन चीज़ों से निकला है. हाँ, तो दो तरह का ये सीखा हमने कि दो तरह की मोहब्बत हो सकती है और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, नहीं होती, क्या होती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, मतलब वो सस्टेनेबल होती है अलग अलग सिनारियोज में, लाइक यू नो वन डजंट अफेक्ट द अदर. और कभी कभी जो दूसरी मोहब्बत है वो पहली मोहब्बत को सुपरसीड भी कर जाती है, जो कि इस केस में कर गई. Absolutely. And now you just want Haji Mushtaq and Barbina to have a So happy he'll ending. find her and ये होगा. Poor Baran will go. और वो कहते हैं तुम कैसे मुझे देते थे, मैं शोर होते हुए कैसे अपनी बीवी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता, और तुम किन नजरों से उठ उसको अपना हाथ लेके चले. सो आई हैड टू बिकम दिस इविल पर्सन. यार खूबसूरत परफॉर्मेंस बाय इत्तिशाम भाई, खूबसूरत राइटिंग बाय जफर मिराज एंड खूबसूरत डायरेक्शन बाय काशिफ निसार. brilliant. Beautiful episode, one of my favorite episodes. दी फेवरेट एपिसोड ऑफ काबली पुलाव. मुझे नहीं पता आखिरी कैसी होगी, बट ये जो बिल्डअप आप ये बिल्डअप हम क्रेव कर रहे होते हैं यार. और ठीक है 3-4 एपिसोड का बिल्डअप ना भी हो, कभी कभी एक एपिसोड में आप एम्पल दे देते हैं. आपने जैसे आमना ने कहा अब्जॉर्ब, जो भी आपने बातें बोली थी, absorb 2-4 और चीजें भी थी. हाँ, एम्पल टाइम दिया आपने. एंजॉय, अब हाँ एंजॉय तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बट जो अब्जॉर्ब करने का उन्होंने मौका दिया. ऑब्जर्व इन मोस्ट पार्ट आप देखते हैं और किस तरह से आम फहम के इंसान मेरे जैसा समझ सकता है कि यार ये यूं है, यू नो. बिल्कुल. It's a That was beautiful. complex story. I watched it twice. It was such a good episode. I watched it twice. Simplicity of And their emotion. performances are outstanding. Outstanding performances. ये अवार्ड वर्दी ड्रामा है Absolutely. और अवार्ड विनिंग ड्रामा है और Absolutely. अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं, अवार्ड विनिंग राइटिंग है, अवार्ड विनिंग डायरेक्शन है. दैट समस इट अप. बिल्कुल. ब्यूटीफुल. क्या लगता है अब आपको क्या होगा? Obviously वो मिलेगी और ये रहेगी. हाँ. होगा तो ये ठीक है. सारे ड्रामे कर लिए जी. कुछ और आप ऐड करना चाहती हैं? नहीं. क्योंकि हमने जवान का रिव्यू रिकॉर्ड करना है ख्वातीनो ज़रात, और पता नहीं वो कितना लंबा होगा, इतना लंबा होगा भी नहीं, हो भी सकता है. नहीं. लेकिन आपको मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर जवान के रिव्यू के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.